Manikchand Pahade Law College, which is there in Aurangabad. Then he completed his LLM in Constitutional and Administrative Law from Department of Law, Savitribai Phule Pune University in 2019. In the first semester of LLM only, he qualified for UGC NET exam in his in first attempt only. Soon after completion of LLM in 2019, he joined Department of Law, Savitribai Phule Pune University as an assistant professor for Human Right Education Program. And in that 1 year, he delivered various lectures of human rights in all the 52 departments of Pune University. Then in 2020, he joined as an assistant professor at Department of Law, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Then in 2021, he joined Vishwakarma University, but later on, due to the workload in 2022, he resigned from the Vishwakarma University, and because he is running his private classes by the name of Karad Law Classes in Pune for JMFC, CGZD, DJ, UGC NET, and also the regular classes of the law students. In this recent JMFC result of 2021, the exam was of 2021, result was declared in 2023. Out of 63, 14 students cleared JMFC, and this is, I'll say this is a big achievement because he has started classes just 2-3 years ago, and his 14 students cleared the JMFC out of 63 students. He also runs one YouTube channel by the name of Law and Life for providing quality legal education to all those who are in want of legal knowledge. His research papers are also published in various journals. It's our pleasure that we have this person with us to guide here on this occasion. Thank you, sir. Thank you so much. Now Professor Harshad will guide us. Yes, I'm audible. Is there any problem or any everyone can hear me properly? Yes, yes, sir, we can hear you properly. Okay. थोडंसं तुमचे माईक मी बंद करतो सगळ्यांचे, जेणेकरून थोडंसं डिस्टर्बन्स होणार नाही. ठीक आहे. So respected Dr. Your principal, all staff of New Law College Mahim, and all my dear students. So many of us, you might be in a first year, second year, or third year. When we complete our LLM or when we complete our LLB, okay. So as per our, we can say our circumstances or as per our dedication, many of us realize at the last year of the LLM that what we have to do after taking the graduation in law. Okay. Many of us might realize in the LLB last year itself that what we have to do, what next after the LLB. Okay. Many students are very dedicated and they are very curious about, they are very cautious about their career opportunities. So they realize in the law first year itself that what we have to do in our after completing our LLB degree. So there might be, as I said, it might be depend upon our situation to situation. So some of you might be already settled in our career and taking just law as for the sake of the knowledge only. So this session is for those students who really want to do something in their career in the law only. They are all want to settle in the law field, and today we are talking about specifically the opportunity in judiciary. Okay, so when we complete your law, you might have any various options in front of you. You might to start your practice in law courts. You might go to the judiciary. You might go to the you might clear UGC NET examination, and you can go into the academics. Or you might be take a job as a law officer or as an assistant legal. So there are many more opportunities for our law students. Okay. In fact, I say, मतलब कई बार ऐसे कहा जाता है कि लॉ में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, थोड़ा कम अपॉर्चुनिटीज है. ठीक है. या फिर लॉ को कई बार ऐसे होता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने लॉ का एज अ सेकंड करियर ऑप्शन चुना होगा.
मतलब बाकी कई एज अ साइंस में नीट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, या फिर यहाँ पे कई इंजीनियरिंग का कोई JEE एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इस वजह से भी बहुत सारे लोग लॉ में आते हैं। बट दिस इज नॉट सो, इट इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन वी कैन से। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की वगैरह बात करेंगे तो ये हाईएस्ट मतलब रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोफेशन में आपको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और जो सवाल हमें LLM के बाद आता है या फिर LLB के बाद आता है, ठीक है, उस सवाल को एक आंसर करने के लिए आज आपके कॉलेज ने लेक्चर रखा है, ठीक है, जुडिशरी में कैसे वहां पे सर्विस में हम किस तरीके से जा सकते हैं। तो आज का जो सेशन है, मैं थोड़ा यहाँ पे PPT आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये जो JMFC और CJJD का जो एग्जाम है, ठीक है, इसके बारे में प्रिपरेशन के लिए हमें किस तरीके का प्रिपरेशन की जरूरत होती है, ठीक है, क्या कुछ चीजों का हमें मतलब ध्यान रखना पड़ता है, क्या सिलेबस होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है, कितने एग्जाम के स्टेजेस हैं, ये सारी बातें जो है, सारी चीजें जो है हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इज एवरीवन कंफर्टेबल विथ मराठी एंड हिंदी एंड इंग्लिश, और शुड वी ओनली गो फॉर द इंग्लिश ओनली? आर यू ऑल कंफर्टेबल विथ मराठी or Hindi and English? You can use your chat box. ठीक है, सगळ्यात हिंदी and English, okay. ठीक है, actually the basic requirement of this exam is Marathi language, ठीक है। You must know either you must know Marathi language, you must able to speak Marathi language, you must able to write Marathi language, ठीक है, and you must able to understand Marathi language. So that kind of certificate we have to provide to MPSC while going for this exam also, ठीक है। Yes. So for the judiciary, first of all, we talk about the eligibility of the examination. You can apply for the judiciary examination under 3 categories. Okay, first one is as a fresher, you can also apply. As a fresher means after completion of LLB without practice, you can apply for the judiciary. Okay, many of our student, in this result, our student of Vaibhav Farkunde, Ritika Srivastav. So many of such students have cleared JMFC examination without having practice. कुछ भी एक दिन भी कोर्ट में जाने के अलावा उन्होंने जो है ये जुडिशरी का एग्जाम वहां पे क्रैक किया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मतलब LLB कंप्लीट करने के बाद LLB के ड्यूरिंग समय में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और LLB कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली आप इस एग्जाम का जो पोस्ट है आप वो हासिल कर सकते हैं। तो ये फ्रेशर का जो क्राइटेरिया है फॉर अप्लाइंग फॉर द जुडिशरी अंडर फ्रेशर कैटेगरी, ठीक है, देयर आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट you need to be fulfilled. The first most important requirement is that you have to clear all your subject in the first attempt itself, ठीक है। मतलब अगर आप सपोज 5 साल का LLB कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपके 10 सेमेस्टर रहेंगे, 10 के 10 सेमेस्टर में आपका कभी भी कोई सब्जेक्ट बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर एक बार भी आपका कोई सब्जेक्ट बैकलॉग होता है और वो रीचेकिंग में आपका सब्जेक्ट नहीं निकलता है और आपको उस सब्जेक्ट को अगर फिर से मतलब देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, तो फिर वहां पे जो है आपको इस एग्जाम को आप फ्रेशर क्राइटेरिया में नहीं दे सकते। आपको 3 साल का प्रैक्टिस लगेगा LLB कंप्लीट करने के बाद में, ठीक है, और उसके बाद में जो है आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो फ्रेशर क्राइटेरिया में पहली जो चीज जरूरी है कि आपने जो है LLB एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहिए, पूरे 10 के 10 सेमेस्टर। अगर आप LLB 3 ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको 6 सेमेस्टर रहेंगे, 6 के 6 सेमेस्टर में आपने उसको फर्स्ट मतलब अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना चाहिए। That is the first requirement. Then second one is that in your last semester, it might be 6 semester or it might be 10 semester. In that last semester, you must have a 50% above score. ठीक है, 55% से above आपके स्कोर जो है लास्ट सेमेस्टर में आपका होना चाहिए। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ कम है, सेकंड सेमेस्टर में कुछ कम है, that doesn't matter. मगर जो लास्ट सेमेस्टर का आपका एग्जाम है उसमें आपको 55% से ज्यादा स्कोर आपको वहां पे होना चाहिए, ठीक है। So this was about the second requirement. Then third requirement is about your age, ठीक है। If you belong to open category, then you must be in between 25, ठीक है। अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास कोई भी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, if you belong to any category, it might be OBC, NTD और कोई भी अगर स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस भी है, SBC भी है, या फिर कोई भी बैकवर्ड क्लासेस क्यों ना हो,
या फिर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी क्यों ना हो, तो आप जो है 30 ईयर्स तक इस एग्जाम को वहां पे दे सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है, मतलब ये जो स्पेशल बेनिफिट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से रुके हुए थे, मगर अभी के बाद आप जो है ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी वहां पे क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी ईडब्ल्यूएस तो बहुत सारे लोगों के पास होता होगा, मतलब पहले ऐसा था कि ओपन के बच्चों को जो है ज्यादातर वहां पे दिक्कतें आती थी कि वो 25 ईयर्स तो ऐसे ही चले जाते थे। ठीक है, तो 25 ईयर्स ऐसे ही अगर चले जाते हैं तो फिर बाद में वो लोग फ्रेशर में क्राइटेरिया में एग्जाम नहीं दे पाते थे। मगर अब ये ईडब्ल्यूएस के जजमेंट की वजह से, ठीक है, एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है उन सबको वहां पे मिल सकता है। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ईडब्ल्यूएस ऑल्सो। ईडब्ल्यूएस को भी जो है वहां पे एक रिजर्व कैटेगरी में जो बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए वो आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेशर का हो गया। फ्रेशर क्राइटेरिया में अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो सबसे पहली तो बात, जैसा मैंने आपको बताया कि सारे के सारे सब्जेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट 55% आपको लास्ट सेमेस्टर में होने चाहिए। और जो थर्ड रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई, एज आपका जो है ओपन के लिए 25 और जो रिजर्व कैटेगरीज के जो बच्चे हैं उनके लिए वो 30 ईयर्स तक वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेशर कैटेगरी का। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 25 के बीच में नहीं है या फिर 30 के बीच में नहीं है। लॉ कंप्लीट होने के लिए थोड़ा सा मतलब बाकी डिग्री कर ली, लॉ लाइफ में बाकी सेटल है, अभी लॉ को आए हैं तो फिर भी जज बनना है, तो उन लोगों के लिए जो है यहाँ पे आपको जो क्राइटेरिया है वो है एज अ प्रैक्टिशनर। ठीक है, सो यू कैन गो एज अ प्रैक्टिशनर। और ये प्रैक्टिशनर का क्राइटेरिया में ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपका एलएलबी कंप्लीट होने के बाद में आप जो महाराष्ट्र का जो अपना जो बार काउंसिल है महाराष्ट्र एंड गोवा का, उसका जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का, वो सर्टिफिकेट से आपको 3 साल कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, आपके लोकल बार से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपने मुंबई के बार में रजिस्ट्रेशन किया है नहीं किया है डजंट मैटर। ठीक है, वो आपको मतलब बाद में भी मिल सकता है, लोकल बार का रजिस्ट्रेशन आप कभी भी ले सकते हैं। मगर महाराष्ट्र एंड गोवा का जो मतलब बार काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन आपका 3 साल पहले का होना चाहिए। आपका एक एनरोलमेंट डेट होता है, उस एनरोलमेंट डेट से जो आपका प्रीलिम का नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन तक जो है आपका 3 साल कंप्लीट होना चाहिए। ये मैंने आपको एक और बात बताना रह गया, ये फ्रेशर के क्राइटेरिया में आपका जो एज है 25 हो या फिर 30 हो, इट विल बी काउंटेड एट एज पर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन का जो डेट है उस तारीख में आप 25 से पहले होने चाहिए। ठीक है, अभी बाद में ऐसा हो सकता है कि सपोज प्रीलिम का एग्जामिनेशन मतलब 1.5 महीने बाद है, नॉर्मली नोटिफिकेशन आने के बाद हमें 45 डेज मिलते हैं, तो उसके बाद में आपका एज अगर 25 से ऊपर भी चला जाता है या फिर 30 से भी ऊपर चला जाता है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए ऊपर चला जाता है, इंटरव्यू में ऊपर चला जाता है, सो डजंट मैटर, बस नोटिफिकेशन के डेट पे आपका जो है एज वो प्रॉपर होना चाहिए। उसी तरीके से प्रैक्टिशनर के लिए भी 3 साल का प्रैक्टिस होने के बाद में, ठीक है, नोटिफिकेशन के डेट तक आपका 3 साल का प्रैक्टिस कंप्लीट होना चाहिए। सो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया। इसमें भी आप जो है जुडिशरी के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट क्राइटेरिया में नहीं बैठते हैं, आपका कोई बैकलॉग था, तो प्रैक्टिशनर के एज में आप कभी भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एज का जो क्राइटेरिया है ओपन के बच्चों के लिए ये 35 तक है। ठीक है, 35 ईयर्स तक, मतलब लॉ कंप्लीट होने के बाद में 3 साल प्रैक्टिस और उसके बाद में 35 तक आपका जो है मतलब 3 साल के प्रैक्टिस होने के बावजूद आपका 35 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। मतलब आपने आपका 35th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट नहीं किया होना चाहिए। अगर आप आपका 31st बर्थडे आपने ऑलरेडी सेलिब्रेट किया है 3 ईयर प्रैक्टिस होने के बाद में, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए वहां पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे भी वही चीज है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास कोई और रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर कोई एनटीडी वगैरह, जो भी कोई सर्टिफिकेट है, आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो देन यू कैन अप्लाई फॉर द जुडिशरी टिल द एज ऑफ 40। ठीक है, 40 साल तक आप जो है जज बनने का आपका जो सपना है वो तब तक वहां पे बरकरार आप रख सकते हैं, आप तब तक उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। ये हो गया एज ए प्रैक्टिशनर। ठीक है, अभी आपका अगर कुछ लोग ऐसे हैं मतलब जिनका अभी एज 35 है या 36 है, 37 है, ठीक है, वो लोग मतलब यहाँ पे मतलब लॉ कंप्लीट होने में ही सपोज 30 हो जाएगा, मतलब 30 मतलब 40 तक कंप्लीट हो जाएगा, रिजर्व कैटेगरी के 40 तक कंप्लीट हो जाएगा, या फिर उसके बाद में प्रैक्टिस होने के बाद में 40 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो वो लोगों के लिए मतलब जो है जेएमएफसी और सीजेजेडी का जो अटेम्प्ट है आप लोग वहां पे नहीं दे पाएंगे। आपको डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जामिनेशन आफ्टर 7 ईयर प्रैक्टिस आप उसको ट्राई कर सकते हैं, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम्स होते हैं, मतलब अगर आपको सरकारी वकील बनना है, ठीक है, अभी आपने इस साल वैकेंसी आई थी और इसकी वैकेंसीज मतलब 5 साल बाद आती हैं।
अभी आई है तो अभी इसके बाद में अभी 2022 में आई है तो 2026 में आएगी, और 26 में जब आएगी तो बहुत बड़ी मात्रा में आती है, मतलब इसमें अभी 550 से ऊपर सीट्स होते हैं, तो वो जॉब लेने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हर कैंडिडेट के लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी 2 बार तक ज्यादातर आती है। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो एग्जाम है तो उसमें भी आप वहां पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया मतलब एज अ प्रैक्टिशनर, मतलब आप यहाँ पे एप्लीकेशन इस तरीके से कर सकते हैं। और तीसरा जो कैटेगरी है एज अ कोर्ट मिनिस्ट्रियल स्टाफ। ठीक है, मतलब अगर आप कोर्ट में मतलब कर्मचारी है, ठीक है, हाई कोर्ट में कर्मचारी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर्मचारी है, तो ऐसे किसी मतलब कोर्ट में अगर आप वहां पे कर्मचारी है तो फिर आप भी वहां पे जो है इस एग्जाम को थोड़ा ज्यादा समय तक भी आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप जो है 45 ईयर्स तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब एलएलबी एग्जाम में कितने मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, डजंट मैटर। ठीक है, कौन सा फर्स्ट, ये प्रैक्टिशनर के लिए भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए, डजंट मैटर, 55% का कुछ भी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस आप लॉयर होने चाहिए और 3 साल पुराने लॉयर होने चाहिए, 3 साल तक आपका प्रैक्टिस कंप्लीट होना चाहिए, तो आप प्रैक्टिशनर में एग्जाम को दे सकते हैं। उसी तरीके से कोर्ट मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है, इसमें एक और मतलब ज्यादातर लोगों के सवाल होते हैं। ठीक है, ये जो हम सेशन ले रहे हैं ज्यादातर कॉमन आस्किंग क्वेश्चंस जो है, मतलब जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक तरीके से मैं पूरे महाराष्ट्र में हम लोग एक हेल्पलाइन की तरह चलाते हैं। ठीक है, जो भी डाउट्स आपके दिमाग में होते हैं आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस सेशन में आपके हर सवाल का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। अगर नहीं होते हैं सॉल्व तो आप मैडम से मेरा नंबर लेके मुझे कभी बाद में भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी हर जो दिक्कत है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के बारे में उसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये कोर्ट मिनिस्ट्रियल स्टाफ का भी जो है, तो आपने सपोज अभी क्लर्क आप ज्वाइन हुए हैं किसी कोर्ट में और उसके बाद में आपने लॉ को एडमिशन लिया, लॉ कंप्लीट किया, तो उससे पहले वाला सर्विस काउंट नहीं होता है। आपका कोर्ट कर्मचारी मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जो सर्विस है वो 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद में आप 45 ईयर्स तक इस जुडिशरी के एग्जामिनेशन को आप मतलब इसका अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो सर्विस जो है आपका एलएलबी कंप्लीट होने के बाद में का जो है वही काउंट किया जाएगा, उससे पहले का सर्विस आपका काउंट नहीं होता है। तो ये एक बात एक आपको ध्यान रखनी है। इसमें भी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप 50 ईयर्स तक 50 मतलब एज तक आप जो है इस एग्जामिनेशन को आप जेएमएफसी और सीजेडी के एग्जाम को आप दे सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट एलिजिबिलिटी। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप में से कौन से लोग जो है इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और कब आप इस एग्जामिनेशन को अपीयर हो सकते हैं। अगर आप में से किसी का बैकलॉग है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट को आपको फिर से एक और एक और कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर मैं थोड़ा बीमार था, तो बीमारी होने की वजह से मैं तो एग्जाम को अपीयर नहीं हो पाया, तो मैंने तो अटेम्प्ट दिया ही नहीं, तो फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब लॉस हो गया क्या? तो यहाँ पे भी आपका वो फर्स्ट अटेम्प्ट माना जाएगा इवन इफ यू आर एब्सेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं मतलब सर्विस में होता है या फिर ऑलरेडी सेटल है लाइफ में, तो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम ही नहीं आते हैं, तो वो जाते हैं सीधा सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के लास्ट में, सेकंड ईयर के लास्ट में और थर्ड ईयर के लास्ट में, मतलब तीनों ही साल में वो लोग एग्जाम देते हैं, तीनों ही सेमेस्टर में। ठीक है, और होते हैं 6 सेमेस्टर। तो ये भी लोगों को जो है वहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुए ऐसे ही माना जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है आपका मतलब आप फ्रेशर में एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, ज्यादातर मैं लॉ के बच्चों को मतलब बहुत बार मैं बोलता हूँ, ठीक है, अगर आपको जज बनना है, ठीक है, देखिए ये कोई मतलब छोटा सपना नहीं है, छोटा जॉब नहीं है। ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन आप बोल सकते हैं जिसको हम जुडिशरी का प्रोफेशन मानते हैं। ठीक है, ये प्रोफेशन ऐसा है, सपोज कोई कलेक्टर भी है, अगर करप्शन करता है, कोई गलत चीज करता है, आप खुलेआम उसके खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। मगर जुडिशरी का जो प्रोफेशन ऐसा है, अगर कोई जज कोई गलती भी करता है तो भी उसके खिलाफ आप लोग कुछ बोलोगे तो ये टॉलरेट नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस लोग करप्शन करते हैं, ये बोलने वाले हाईकोर्ट जस्टिस को भी आप जो है कंटेम्प्ट के लिए आपने पनिशमेंट दिया है। ठीक है, मतलब कोई आदमी करप्शन के जैसे सीरियस एलिगेशंस के ऊपर भी आप लोग बात नहीं कर सकते। इतना रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन को हमने आज तक रखा है और इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी को, ठीक है, ये किसी भी प्रकार की जॉब से कम नहीं है। ठीक है, लेजिस्लेचर की भी अगर आप बात करोगे, इतने अच्छे लॉ बनाते हैं, उसमें भी कुछ गलत होता है, कुछ लोगों के खिलाफ होता है, तो उसको सही करने का काम जो है हमारी जुडिशरी करती है। ठीक है, आपने अभी कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हर एक राइट का जो है सही मीनिंग देना, ठीक है, मतलब राइट टू लाइफ जैसे हो या फिर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, ऐसे अधिकारों को कितना वाइडर मतलब बनाने का काम जो है, उसका एक सही मीनिंग देने का काम जो है, ठीक है, जुडिशरी ने किया। इतना रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, तो इस प्रोफेशन में आपको अगर आना है तो आपको हर तरीके से केयर करना पड़ेगा
कि लॉ में सारे लेक्चर्स मैं ठीक से सुन रहा हूँ, लॉ कॉलेज में मतलब मैं बिल्कुल मेरे करियर की तरफ बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, मेरा कोई भी सब्जेक्ट बैक नहीं रहने पाए। ठीक है, कई बार ऐसे होता है इंटरनल में आप एग्जाम नहीं देते हो, उसकी वजह से फेल हो जाते हो। ठीक है, कई बार मतलब थोड़ा कुछ शादी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है सेकंड सेमेस्टर में दे लूंगा। ठीक है, और जब लॉ कंप्लीट होने के बाद में ये पता चलता है कि भाई मेरा उस दिन का जो छोटा सा गलती था, मुझे लगा क्या होगा, दोस्त की शादी के लिए एक बार सब एक सब्जेक्ट बाद में दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये जो गलती है आपकी 3 साल तक आपको जो है इस पोस्ट के आसपास भी नहीं आने देती। ठीक है, आपका जो सपना है, कुछ लोगों का तो ये चला जाता है। ठीक है, ये सपना वहां पे टूट जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये लेक्चर जो आपके कॉलेज ने अभी रखा है, ये इस एज पे आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं, अभी आप में से भी कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये क्राइटेरिया के बारे में पहले पता नहीं था। ठीक है, नॉर्मली हमें हमें ज्यादा मतलब जैसे अगर सपोज आपका 12th स्टैंडर्ड में कोई सब्जेक्ट बैकलॉग रहता है तो पूरा ईयर डाउन हो जाता है, तो हम उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि भाई ईयर खत्म हो जाएगा। 12th के एग्जाम को हम सीरियसली लेते हैं, उतना सीरियसली हम LLB के सेमेस्टर एग्जाम को भी हम लोगों को लेना है अगर आपको जुडिशरी में आना है तो। एज अ फ्रेशर कैटेगरी, फ्रेशर में आपका लॉ JMFC क्वालिफाई होने का चांसेस भी ज्यादा होता है, क्योंकि हम जो स्टडी से कनेक्टेड होते हैं। जब आप प्रैक्टिस में जाओगे या फिर आप में से कुछ लोग अभी सेटल है किसी जॉब में वगैरह, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इतना ज्यादा जरूरत नहीं लगता है, दिन भर का टाइम भी उसमें चला जाता है। जो लॉ के समय में जब आप कर सकते हैं स्टडी, वो आप बाद में नहीं कर सकते, इसलिए फ्रेशर में एलिजिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं भी है तो आपको हार माननी नहीं चाहिए, यू कैन स्टिल सिक्योर ए जॉब इन एज अ प्रैक्टिशनर की कैटेगरी में भी आप इस जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज अबाउट द एलिजिबिलिटी। अभी ये जो जॉब है, अभी आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि JMFC और CGJD ये दोनों क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको सवाल पूछूंगा यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जज एंड मैजिस्ट्रेट, आपको क्या लगता है? मतलब आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। यस, एनीबडी कैन से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जज एंड मैजिस्ट्रेट। आप थोड़ा मतलब ये कर सकते हैं, मतलब कई बार तो ऐसे सवाल आता है। अभी JMFC अगर हम बात करेंगे तो ये क्रिमिनल कोर्ट में जो मैटर्स होते हैं उसमें JMFC जज होता है, और CJJD जो है सिविल जो मैटर्स है उसमें CJJD मतलब वहां पे जज होता है। एक ही पोस्ट है, एक ही पोस्ट में अगर आपको क्रिमिनल का मतलब मैटर असाइन किया जाता है तो यू विल बी वर्क एज अ JMFC, और अगर आपको सिविल का मैटर दिया जाता है तो यू विल बी वर्क एज अ CJJD। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि जज माने क्या है, सिविल कोर्ट में काम करने वाला जो है जज होता है, और जो क्रिमिनल कोर्ट में काम करने वाला मतलब इस तरीके से डिसीजन देने वाला जो होता है वो मैजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, मगर ये जो है ये सही नहीं है। ठीक है, जब अगर हम हाई कोर्ट जज की बात करेंगे, हाई कोर्ट जज को भी हम जज ही बोलते हैं। क्या वो क्रिमिनल मैटर हैंडल नहीं करते हैं? क्या वो क्रिमिनल मैटर में निर्णय नहीं देते हैं? वो वहां पे भी डिसीजन देते हैं। ठीक है, तो भले मतलब जज का जो इंपॉर्टेंट, जज और मैजिस्ट्रेट का जो डिफरेंस है ये नहीं है कि जो क्रिमिनल में रहेगा वो मैजिस्ट्रेट रहेगा और सिविल में रहेगा वो जज रहेगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है? मैजिस्ट्रेट जो होता है उसको एडजुडिकेशन के अलावा बहुत ज्यादा भी वर्कलोड होता है। ठीक है, सपोज सपोज कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है, मतलब जिसने कोई सपोज क्राइम किया है, देन द ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द सेशन कोर्ट। ठीक है, बस सेशन कोर्ट ही उसको ट्राई कर सकता है। मर्डर का ऑफेंस है सपोज, तो वो भी ऑफेंस अगर पहले मतलब जब ट्रायल उसका जब पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो उसका रिमांड का प्रोसीजर जो है मैजिस्ट्रेट के पास आता है। ठीक है, तो जज एक ऐसा बंदा मतलब पर्सन होता है जिसका मेन जो वर्क है उसको बस न्यायदान करने का जो काम है या फिर एडजुडिकेशन करने का जो काम है उसका मेन काम होता है। और मैजिस्ट्रेट जो है उसको बस जुडिशियल वर्क के अलावा और भी ज्यादा कुछ मतलब वर्कलोड होता है, जैसे रिमांड के मैटर्स को हैंडल करना, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के कुछ चीजें देखना। ठीक है, या फिर मतलब इंक्वेस्ट पंचनामा, कहीं अगर किसी का सुसाइडल डेथ होता है, ठीक है, किसी का सुसाइड होता है या फिर सस्पिशियस डेथ होता है, ठीक है, कोई किसी का मर्डर कर देता है आपके एरिया में वगैरह, तो वहां पे जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी वहां पे इंक्वेस्ट पंचनामा कंडक्ट कर सकता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट वो बना सकता है, या फिर जो JMFC है वो भी वहां पे जाके इस तरीके का इंक्वेस्ट पंचनामा कर सकता है। ठीक है, मतलब एक जज जो होता है वो 24 आवर्स ड्यूटी पे होता है। ठीक है, सपोज रात के 10 बजे है, किसी एक्यूज को अरेस्ट किया है, तो पुलिस वाले जो है उस टाइम पे आपके घर आ सकते हैं और आपका जो है मतलब जुडिशियल कस्टडी आप उस वहां पे एक्सटेंड कर सकते हैं, इवन इफ दैट ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, so this kind of some additional works, this kind of some administrative works has to be done by the magistrate also, magistrate.
ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट का जो डिफरेंस है, मैजिस्ट्रेट एंड जज का डिफरेंस, जज जो होता है इट इज मेनली असाइन्ड फॉर द जुडिशियल फंक्शन, और जो मैजिस्ट्रेट होता है he also has to do some additional function like administrative functions with the judicial functions, तो उसको जो है वहां पे मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो ये जो एग्जाम है जेएमएफसी और सीजेजेडी, आप बस एक ही एग्जाम है, आप इस एग्जाम को क्रैक करोगे, आपका ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग के बाद में जो आपको जो पोस्ट दिया जाएगा, अगर आपको क्रिमिनल कोर्ट में बिठाया जाएगा, वहां पे आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करना पड़ता है, तो यू विल बी वर्क एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और अगर आपको सिविल वर्क वहां पे दिया जाता है, सिविल कोर्ट में आपको बिठाया जाता है ये एग्जाम ट्रेनिंग के बाद में, देन यू विल बी वर्क एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन। और ऐसा नहीं है कि आपको बस सिविल ही मिलता है, क्रिमिनल ही मिलता है, कुछ समय तक आप सिविल में काम कर सकते हैं, और आप ही के सामने वहां पे कुछ क्रिमिनल मैटर भी आ सकते हैं। तो वहां पे आपको जब साइन करोगे तो वहां पे आपका जेएमएफसी डिजिग्नेशन रहेगा, और जब आप सिविल मैटर पे जजमेंट पे साइन करोगे या फिर उस तरह के कुछ काम करोगे, तो वहां पे आपका डिजिग्नेशन जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन रहेगा। ठीक है, सिविल जज जूनियर डिवीजन। अभी ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका एक नेचर ऑफ जॉब समझाया। ठीक है, हमारे सीआरपीसी में, ठीक है, आखिरी में शेड्यूल है, उसमें आपको बताया गया है कि विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ जेएमएफसी। ठीक है, जेएमएफसी कितना पनिशमेंट दे सकता है ये आपको सीआरपीसी में बताया गया है। ठीक है, 3 साल तक जेएमएफसी सजा दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बस 3 साल तक के ऑफेंसेस जेएमएफसी के सामने आते हैं। ठीक है, उससे आगे वाले भी मैटर जो है वो जेएमएफसी के सामने आ सकते हैं, अगर सीआरपीसी में बताया गया है दिस ऑफेंस इज ट्रायबल बाय जेएमएफसी। और अगर हियरिंग का मतलब होने के बाद में, ट्रायल होने के बाद में मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस जो गुनहगार है, ठीक है, इसको ज्यादा पनिशमेंट देना चाहिए बियॉन्ड 3 इयर्स, तो उस समय जो है वहां पे उसको ज्यादा पनिशमेंट देने के लिए वो सीजेएम तक वहां पे भेज सकता है। तो ये होगा जेएमएफसी का, सीजेजेडी का और इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब मैंने आपको समझाया कि मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है, नोबेल प्रोफेशन है। ठीक है, हमारे इंडिया में इससे ज्यादा नोबेल प्रोफेशन दूसरा नहीं है। ठीक है, इंडिया में आप बात कर सकते हैं या फिर किसी और कंट्री में भी अगर आप बात करोगे, तो जुडिशरी जो है सबसे ज्यादा नोबेल प्रोफेशन है और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। इवन आप गलती भी करते हो तो भी आपकी गलती के बारे में खुलेआम बात नहीं की जा सकती, इतना रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। ठीक है, आप आईपीसी में देखते हो मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अ डिफेंस, बट फॉर जज इवन मिस्टेक ऑफ लॉ इज ऑल्सो डिफेंस। ठीक है, सपोज कोई जज है, उसको लॉ पता नहीं है और उसने कोई गलत निर्णय देने के बाद, मतलब उसको लगा कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए 2 साल का, उसको लगा कि 3 साल का पनिशमेंट है। ठीक है, किसी लॉयर ने नहीं बताया, अक्यूज के लॉयर ने नहीं बताया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बताया, किसी ने नहीं बताया, और जज ने गलती से सपोज जहां पे 2 साल का पनिशमेंट है वहां पे जज ने सपोज 4 साल का पनिशमेंट दे दिया। ठीक है, तो इवन मिस्टेक ऑफ लॉ इज ऑल्सो डिफेंस। जज इज नॉट लायबल फॉर द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। उस बंदे को जो ज्यादा देर तक हमने रखा है उसके लिए जो जज है वहां पे वो लायबल नहीं होता है। मतलब एक ही ऐसा प्रोफेशन है जहां पे इवन मिस्टेक ऑफ लॉ इज ऑल्सो डिफेंस। ठीक है, आपने कोई गलती किया तो उसके बारे में भी खुलेआम बात नहीं कर सकते, इतना रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, और इसको रिस्पेक्टेबल रखने के लिए ये सब हमने चीजें रखी है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके एग्जाम का सिलेबस। ठीक है, मतलब ये एग्जाम का पहले स्टेजेस समझते हैं कि किस तरीके से एग्जाम होता है। ठीक है, इस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है ज्यादातर जनवरी में नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, मतलब आप जब भी आपका एलएलबी कंप्लीट करोगे और अगर आप फ्रेशर इसमें एलिजिबल हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा या फिर फरवरी में आएगा। अब इस साल का जो नोटिफिकेशन है 4 फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इस साल का एमपीएससी ने जो डेट दिया एग्जाम का वो 19 मार्च का है। ठीक है, 19 मार्च को आपका एग्जाम रहेगा। तो ज्यादातर नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी में आएगा और एग्जाम जो है आपका मार्च अप्रैल या फिर ज्यादा से ज्यादा मई में रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को आपको ये सारा सिलेबस वहां पे होता है। जैसे वहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, इंडियन पिनल कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड है। ठीक है, मैंने यहाँ से थोड़ा सा डिवाइडेशन किया है। ये जो पहले 3 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एंड लिमिटेशन, ये बस प्रीलिम एग्जामिनेशन को होते हैं। ठीक है, मतलब एमसीक्यू प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए रहेंगे। आपका प्रीलिम का एग्जामिनेशन जो है वो एमसीक्यू में रहेगा, 100 एमसीक्यू रहेंगे और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, 100 एमसीक्यू 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन, और उसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी होता है। ठीक है, यस होता है, निगेटिव मार्किंग भी होता है, और वो जो है 1/4
निगेटिव मार्किंग आपका होता है, मतलब एमपीएससी के बाकी एग्जामिनेशन के लिए जो है 1/4 वाला, वही हमारे लिए भी 1/4 का निगेटिव एग्जामिनेशन वहां पे होता है। तो आपको जो है बहुत प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना होता है। और ये जो एग्जामिनेशन होता है, इवन निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद इसका जो मेरिट जो है, मतलब आपको उस तरीके का हाई क्वालिटी प्रिपरेशन करना पड़ता है। लास्ट ईयर इसका 79.50% तक इसका मेरिट था। मतलब इनको जो एग्जामिनेशन के लिए जितने बच्चे चाहिए उस 80 मार्क्स से ऊपर थे, ठीक है। तो 80 तक जो इसका मेरिट वहां पे लगता है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जो वैकेंसी होती है वो ज्यादा होती है। जैसे 2019 में ज्यादा वैकेंसीज थी, 190 वैकेंसीज थी, ठीक है। 190 वैकेंसीज होने के बाद तो वहां पे मेरिट जो है वहां पे बस 31 लगा था। 31 अगर मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं, यू विल बी क्वालिफाई फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये जो जेएमएफसी का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, ये जो 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 लॉज हैं, इनके ऊपर आपको वहां पे एग्जामिनेशन होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र एंड कंट्रोल और लिमिटेशन एक्ट जो है, ये बस आपके प्रीलिम एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट हैं। और नीचे जो आपको दिए गए हैं, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर आपको स्क्रीन पे ये नीचे वाले सिविल लॉज दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब सिविल प्रोसीजर कोड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो आपके सिविल लॉज हैं, ये आपको मेंस एग्जामिनेशन भी यही सिलेबस रहेगा, ठीक है। ये भी आपका एक, देखिए ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। बाकी जब आप एमपीएससी का एग्जामिनेशन देखते हो, मतलब राज्य सेवा का हो, आपको कलेक्टर बनना है, आपको मतलब डिप्टी कलेक्टर बनना है, यूपीएससी का एग्जामिनेशन अगर आप देखते हो, प्रीलिम में जो सिलेबस होता है वो ज्यादातर डिफरेंट होता है, और मेंस में जो सिलेबस होता है वो अलग होता है। जेएमएफसी में ऐसा नहीं है। जो आपको सब्जेक्ट प्रिलिमिनरी में जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वही 80% सिलेबस आपको मेंस में भी रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको एमसीक्यू का एग्जाम है, वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, ठीक है। इतना ही वहां पे डिफरेंस है। और एक और बात इस एग्जाम की आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ही फिक्स सिलेबस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है। अभी मैंने बोला, जैसे मैडम ने आपको बताया, हम लोग क्लासेस लेते हैं एग्जामिनेशन के, तो हम लोग जो पढ़ाते हैं क्लास में या फिर आपके जो नोटबुक में जो होता है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो एक फिक्स पोर्शन है जिसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, वहां पे आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 80% तक स्कोर है, ठीक है। 80% को मेरिट क्लोज हो जाता है। मतलब जितने बच्चे जुडिशरी को चाहिए, अभी प्रीलिम सपोज अगर 100 पोस्ट है, ठीक है, वैकेंसी अगर 100 पोस्ट का निकला है, तो प्रीलिम एग्जामिनेशन को कितने लोग क्वालिफाई होते हैं? 1000 लोग क्वालिफाई होंगे, ठीक है। क्योंकि 10 के 1:10 रेशियो में वो लोग वहां पे मेंस एग्जामिनेशन के लिए बच्चे लेते हैं, ठीक है। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, एमपीएससी ने 100 पोस्ट के लिए वैकेंसी दिया है, ठीक है, अब इसमें फॉर्म भी ज्यादा नहीं हुए थे। मतलब जैसे बाकी जुडिशरी में होता है, मतलब लॉ के कितने सारे बच्चे हैं, मैं मतलब मुझे एक्चुअली बुरा लगता है, इसलिए मैं मतलब हमेशा इंसिस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट हो पाऊं, ठीक है। अभी ये आपसे कनेक्ट होने का ये भी मतलब है कि हम लोगों को पता नहीं होता है, ये कंपटीशन इतना कम है, ठीक है। अगर आप एमपीएससी का, राज्य सेवा का, डिप्टी कलेक्टर का अगर आप एग्जाम लेते हो, तो उस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, आपको 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक फॉर्म होते हैं। यूपीएससी एग्जामिनेशन को भी 10-10 लाख तक फॉर्म होते हैं, ठीक है, पूरे इंडिया से। और उसमें पोस्ट आपको बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पे आपको 100 पोस्ट रहेंगे, 63 पोस्ट रहेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर में 63 पोस्ट है, उससे पहले 74 पोस्ट है, ठीक है, उससे पहले 190 पोस्ट है। और अभी का जो ऐड आएगा, ठीक है, ये भी बहुत जल्दी आने वाला है, मतलब ये 4 फरवरी तक आएगा, उसमें भी नियर अबाउट 195 पोस्ट रहने वाले हैं। मतलब ये इतने पोस्ट सैंक्शन किए गए हैं, तो इतने रिस्पेक्टेबल पोस्ट 195 तक पोस्ट है। और एप्लीकेशन कितने आते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन आते हैं कितने भी ज्यादा है, 10,000 से नीचे आते हैं, ठीक है, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, मतलब इतने कम एप्लीकेशंस होते हैं। तो अगर आप रेशो देखोगे, मतलब बाकी एमपीएससी एग्जामिनेशन का और लॉ के जेएमएफसी के एग्जामिनेशन का, ठीक है, बिल्कुल भी मैच नहीं होता है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है कंपटीशन का। वहां पे जितना बड़ा कंपटीशन है, ये उसके कंपैरिजन में कुछ भी कंपटीशन नहीं है। तो अगर आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी है लॉ के समय में, मतलब आपको ये घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि सर मुझे तो अंग्रेजी नहीं आता है, मैं तो मतलब थोड़ा मतलब रूरल एरिया से मेरा बाकी 12th तक हुआ है, अभी तो मैं मुंबई में आया हूँ, मगर मेरा फिर भी अंग्रेजी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो मेरा क्या होगा वहां पे, ठीक है। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका मतलब मराठी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश अच्छा नहीं है डजंट मैटर, हिंदी अच्छा नहीं है डजंट मैटर, मराठी अच्छा होना चाहिए। और ये जो सब्जेक्ट का आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज में जो आपको एक छोटे छोटे मतलब जो कंसेप्ट होते हैं, कोई डॉक्ट्रिन्स है, कोई मैगजीन्स है, ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए।
अगर आपका ये मतलब बेसिक आपका अगर स्ट्रांग है तो आप इसे एग्जामिनेशन को आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इवन जो बच्चा अच्छे तरीके से बोल नहीं पाता है, ठीक है, मतलब उसको अगर थोड़ा करेज भी नहीं है, ज्यादा लोगों के सामने खड़ा किया तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, तो ऐसे बच्चों को भी मैंने जेएमएफसी होते हुए देखा है, ठीक है। अभी हमारे क्लासेस बस 3 साल के पुराने हैं, मतलब ज्यादा ऐसे लोग को हमने नहीं पढ़ाया, मतलब ये किया है, ठीक है। मगर फिर भी जो है हमारा जो रेशो है, मतलब लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था उसमें हमारे 16 स्टूडेंट्स थे जो जज बन गए, और इस साल के जो उसमें 40 स्टूडेंट थे। और कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो लॉ कंप्लीट होने के बाद में, मतलब 98 के 3 बच्चे हमारे इसमें, मतलब आप सोच सकते हैं 24 के एज में इतना बड़ा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन उनके, मतलब उन्हें उस जो सीट है उस पर बैठने का उन लोगों को मौका मिला है। ये मौका आप लोगों को भी मिल सकता है अगर आप जो मैंने आपको चीजें बताई है उनके ऊपर आप फोकस करते हैं। ये सब्जेक्ट्स को आपको नोट डाउन करना है, या फिर आप सीधा सिंपली इनका मतलब आप एक स्क्रीनशॉट भी आप इनका लेके रख सकते हैं, या फिर आप जुडिशरी का सिलेबस ऐसे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, ये सब्जेक्ट्स को आपको एक बार आपके दिमाग में रखना है। और जब आपका एलएलबी में जब आपका ये पोर्शन चलेगा, सपोज आपका अगर आप इस सेमेस्टर में आपका इंडियन पिनल कोड है, तो लॉ के समय पे ही आपको इंडियन पिनल कोड को बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। मतलब कौन से सेक्शंस है, ठीक है, कौन से सेक्शन में कौन सा पनिशमेंट्स है, ठीक है, उसमें और ज्यादा हम क्या पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे केडी गौर जी का जो बुक है, उस बुक को मैं किस तरीके से पढ़ सकता हूँ, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे करनी है, ठीक है। लॉ के टाइम पे आपके पास बहुत ज्यादा समय है, ठीक है। जब आप लॉ कंप्लीट करोगे, ठीक है, तो आपका लॉ नियर अबाउट मतलब कंप्लीट सपोज मार्च में या फिर सपोज जनवरी में अगर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, तो फिर आपको जो है वहां पे सपोज आपका रिजल्ट भी अगर जून में लगता है, तो आपके पास 5 महीने 6 महीने रहेंगे अगले साल के एग्जाम को देने के लिए। अगर टाइम पे खत्म होता है, नोटिफिकेशन अगर एकदम टाइम पे आता है, तो आपके पास 2 महीने 3 महीने रहेंगे, तो 3 महीने में ये सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, ठीक है। तो ये सब करने के वहां पे बर्डन आपका बढ़ना नहीं चाहिए। इसीलिए जब आप लॉ में हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन को, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को आप किस तरीके से डील करते हैं मैं इसके बारे में आपको कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। सपोज आपको लैंड लॉज है, सपोज आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ठीक है, आप उन सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ाई करते हो, ठीक है, वो आपके हिसाब से है। मतलब आप अगर आपको बाद में प्रैक्टिस करना है, मतलब प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मैटर्स पे आपको हैंडल करना है, तो फिर आप उसको ज्यादा सीरियसली मतलब उससे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। मगर आप लोगों को आज ही ये डिसाइड करना है कि अगर मुझे जज बनना है, तो मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेरा नोट्स रहेंगे वो मैं बहुत प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट मुझे जब सिलेबस में है तो उसको मैं बहुत अच्छे से स्टडी करूंगा। लिमिटेशन एक्ट है, इंडियन पिनल कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इन सारे सब्जेक्ट्स के जो है मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा। ये आपको तय करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके प्रीलिम के सिलेबस में है, ठीक है। इन सब सब्जेक्ट्स पे अगर आप देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको 10 मार्क तक आपको एमसीक्यू आते हैं, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट को भी आपको 7 या 8 मार्क तक एमसीक्यू आते हैं, लिमिटेशन एक्ट को भी आपको 7 या 8 मार्क तक एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। आप अगर आप इंडियन पिनल कोड की बात करते हो तो इसके ऊपर भी आपको जो है 10 मार्क तक एमसीक्यू आपको आ सकते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 10 से 12 मार्क्स तक आपको ये पूछा जा सकता है। इंडियन एविडेंस एक्ट आपको 10 से 12 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। सिविल प्रोसीजर कोड भी आपको 10 से 12 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एंड स्पेसिफिक, ये 4 सब्जेक्ट के ऊपर 20 मार्क के लिए सवाल पूछे जाते हैं। और अगेन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 10 मार्क तक आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो सारे मतलब कैलकुलेशंस हैं, ये आपको अभी से दिमाग में लाने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपके कॉलेज ने जो लेक्चर अरेंज किया है, इसको आप नॉर्मल लेक्चर्स की तरह मत ले लीजिए, ठीक है। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि एक लेक्चर जो है इससे आपको आपका लाइफ का ट्रैक मिल सकता है कि भाई मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे तो जज बनना है। लॉ में सबसे बड़ा और क्या हो सकता है, ठीक है, जज का पोस्ट चला और क्या हो सकता है, और मैं इसके लिए वहां पे ट्राई करने वाला हूं। अगर आप इस पोस्ट के लिए ट्राई करने वाले हैं तो आज के इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ जो है ये चीजें याद रखनी है। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कुछ चीजें फास्ट भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को इतने मार्क्स के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल के लिए इतने मार्क्स के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे लेक्चर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगे, ठीक है। वहां पे भी मैंने रेफरेंस बुक के लिए एक अलग वीडियो बनाया है। आप एक मतलब अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे जेएमएफसी एलिजिबिलिटी, आपको दूसरा किसी का वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला जो रेफरेंस है यूट्यूब हमारा ही देगा, वहां पे आप एलिजिबिलिटी का फिर से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, आप मैडम से नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। मगर आपको आज ही तय करना है कि मुझे जो है लाइफ में क्या करना है। अगर मुझे जज बनना है तो फिर मेरा आज का कदम क्या होगा, ठीक है। कल से जो है या फिर इस लेक्चर के बाद में, अभी ये 26 जनवरी है, मतलब अच्छा दिन है, तो इस दिन से जो है मैं ये शुरुआत करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब जब आप लॉ कंप्लीट करोगे,
ठीक है, ये लेक्चर्स आपके पास मतलब आपके साथ डिस्कस करने का मैं ये बहुत बड़ा मौका मानता हूँ, या फिर बहुत सुनहरा मौका मेरे लिए है। ठीक है, मैं आपके कॉलेज का इसके लिए मतलब शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे यंग माइंड्स के साथ कनेक्ट होने का मुझे उन लोगों ने मौका दिया है। ठीक है, क्योंकि आप में से कोई अगर लोग ये मेरा लेक्चर सुन के इस मिशन पे लग जाते हैं और आप इस तरीके का स्टडी मतलब कंप्लीट करने लग जाते हैं, जब आप जज बनोगे तो उस स्पीच में आप बिल्कुल मेरा नाम लोगे कि सर ने मुझे उस दिन समझाया था कि ये सारा सिलेबस है, इस तरीके का स्ट्रैटेजी है, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, और मैं तब से इस काम के लिए लग गया था। ठीक है, तो तब जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलने वाला है, ठीक है, ये इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन लाइफ में कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपको एक सही रास्ता दिखाने के लिए आज का ये लेक्चर आपके कॉलेज ने अरेंज किया है। तो ये सिलेबस आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अभी नोट नहीं कर पाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कितने सारे मार्क्स का पूछा जाता है, तो वो भी अगर आप वहां पे देखोगे, मतलब यूट्यूब पे अगर आप जेएमएफसी स्ट्रैटेजी ऐसा सर्च करोगे तो प्रोफेसर कराड़ के आपको लेक्चर्स वहां पे भी मिल जाएंगे, या फिर आप मतलब कराड़ लॉ क्लासेस भी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। मगर पर्पज जो है आपका, जो है आपको ये सारा जो है चीजें मतलब ध्यान में रखना है कि कौन से मतलब एग्जामिनेशन मतलब किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी प्रीलिम का सिलेबस बताया, तो ये आपका मेंस का सिलेबस है। ठीक है, प्रीलिम का एग्जामिनेशन आपका 100 मार्क्स का होता है, उसमें से मेरिट लगता है, और जितने ज्यादा वैकेंसीज होते हैं उसके 10 टाइम्स वहां पे जो स्टूडेंट्स को जो है मेंस के लिए वहां पे स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, 10 टाइम्स स्टूडेंट्स, मतलब 100 वैकेंसीज है तो 1000 लोगों को जो है मेंस का एग्जामिनेशन देने का मौका मिलता है। तो ये आपका सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में आपको कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपको 2 पेपर होते हैं, हर पेपर आपका 100 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स, पेपर सेकंड 100 मार्क्स। तो वहां पे सिविल प्रोसीजर कोड है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स है, पार्टनरशिप है, स्पेसिफिक रिलीफ है, ये सारे के सारे वही सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रीलिम में थे। मैंने आपको बताया कि ये भी प्लस पॉइंट है। ठीक है, जब आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हो, एमपीएससी एग्जामिनेशन के लिए आपको जो है प्रीलिम के लिए अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, मतलब बाकी राज्यसभा पीएसआई कंबाइन वगैरह वो जो एग्जाम वगैरह आप देखते हो, मेंस के लिए अलग प्रिपरेशन होता है। ठीक है, इंटरव्यू की तो बात ही अलग होती है। तो ये सब जो है आपको यहाँ पे जुडिशरी में नहीं होता है। एक तो बेसिकली कंपटीशन कम है, क्योंकि कितने सारे लोग बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, कितने सारे बच्चे, जब आप लॉ कंप्लीट करोगे, आपकी अभी अगर आप आपके क्लास में भी अगर आप वेरीफाई करोगे, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आज लेक्चर लेने आए हैं। ठीक है, पहले थोड़ा आते तो हमको और पता चलता कि मतलब ये सब्जेक्ट को सीरियसली लेना है, हमारा तो सब्जेक्ट बैकलॉग हो गया। ठीक है, ऐसा भी कुछ लोग सोच रहे होंगे। तो जिनका बैकलॉग नहीं है उन लोगों को सोचना है कि बहुत सारे बच्चे जो है फ्रेशर, एज ए फ्रेशर पहले से कंपटीशन से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, मैं अभी भी कंपटीशन में हूं, तो मैं कंपटीशन में मुझे मतलब टिका रहने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिशनर के बाद तो वो लोग आपके फिर से वो कंपटीशन में आपके आएंगे। ठीक है, फिर भी 10,000 से ऊपर फॉर्म नहीं आते हैं, और पोस्ट इतना क्लास 1 की पोस्ट है, मतलब ये हर बार हम लोग इस तरीके का रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, बाकी एमपीएससी के एग्जामिनेशन के जो क्लासेस वाले होते हैं वो इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं बना पाते हैं। ठीक है, मतलब 14 क्लास 1, एक रिजल्ट में 14 क्लास 1 एक बड़ा रिकॉर्ड होता है। अभी सरकारी वकील का जो एग्जाम, मतलब हमारे पास जो स्टूडेंट्स है, हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो लॉ में जो है मतलब 350 प्लस क्लास 1 का रिकॉर्ड जो है अभी हम जब रिजल्ट लगेगा तो हम बना सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपको बताने का मकसद क्या है कि ये जो लॉ में जो हमारे जो अपॉर्चुनिटीज है, ये बहुत अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और बहुत इजी अपॉर्चुनिटीज है, और इसके बारे में जो है बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि भाई लॉ में आगे चल के हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए तो कोई कुछ क्राइटेरिया नहीं लगता है, बस एलएलबी कंप्लीट हो गया तो वहां पे जस्ट एक कोड डाल दिया, बस आप कोर्ट में जा सकते हैं, जज बन सकते हैं, लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। अभी असिस्टेंट लीगल का ऐड आया है। ठीक है, असिस्टेंट लीगल बन सकते हैं, उसमें भी मतलब ग्रुप ए के भी वैकेंसीज है, ग्रुप बी के भी वैकेंसीज है। लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, यूजीसी नेट क्रैक करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन की तरह मतलब बाकी जैसे कॉलेजेस हैं, मतलब नेट एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद में आपको 10 लाख भरना है, 50 लाख भरना है। ठीक है, इतना सब लॉ में नहीं होता है। लॉ में आपको कितने सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे जहां पे आपको विदाउट टेकिंग सिंगल रुपीज आपको वहां पे पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो लॉ में हमारे जो है मतलब कॉलेजेस वालों ने भी इतना क्वालिटी रखा है। ठीक है, मतलब सिर्फ आप पुणे की बात करोगे तो वहां पे 30 प्लस लॉ कॉलेजेस हैं। जब आप सीटी के एग्जामिनेशन का फॉर्म आप भर रहे थे तो आपको पता चलेगा इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आपको यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में भी है। ठीक है, ये सब अपॉर्चुनिटीज है, मगर इसको ग्रैब करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जरूरी है कि हम लोगों को इसके बारे में बहुत जल्दी पता चलना चाहिए, एंड हमारा जो हर कदम है उस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एलएलबी खत्म, एलएलबी में बस एकदम एंजॉय कर रहे हैं, कट्टे पे बैठ रहे हैं, चाय पानी कर रहे हैं, मतलब लाइफ एकदम से सुकून से जा रही है,
ठीक है, प्रोफेसर के इसके कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में एलएलबी के बाद में पता चल रहा है कि भाई एलएलबी तो 3 साल तो चले गए, ठीक है, बाद में फिर एलएलएम में चले गए, फिर से वही शुरू हो जाता है, ठीक है। ये अगर चीजें आप कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि मतलब वहां पे किस तरीके से मतलब हमें अपॉर्चुनिटी की तरफ हमारे बढ़ना है, तो फिर जो है वहां पे आपको दिक्कतें आती है। बाद में आपका एज आपको मतलब रोकता है कि भाई कितना भी अभी प्रयास करोगे तुम्हारा तो तुम तो एज बार हो गए, ठीक है। बाद में आपको जो है टाइम आपके पास कम बचता है, 1-2 साल में प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करने के लिए पहले तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इस तरीके का आप मत कीजिए। ये जो सिलेबस है, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर बाद में भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। अभी इसमें जो है मेंस के एग्जामिनेशन में एक और चीज होती है, वो होता है जजमेंट राइटिंग, ठीक है। सिविल के पेपर में आपको एक सिविल का एक प्रॉब्लम भी दिया जाता है कि मतलब प्लेंटिफ ने ये कहा है, प्लेंटिफ का ये सारी दिक्कतें हैं, डिफेंडेंट ने उसके प्रॉपर्टी के ऊपर एक मतलब कब्जा किया है, तो इस तरीके का डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में ये सारी चीजें बताई है, प्लेंटिफ ने ये एलिगेशंस लगाए हैं और डिफेंडेंट ने जो है इस तरीके का डिफेंस लिया है, और आपको जो है इसके ऊपर जजमेंट लिखना है। तो ये जजमेंट राइटिंग की भी जो आर्ट है, ठीक है, इसके बारे में आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। हम लोग क्लास में 10 दिन का बस सेमिनार लेते हैं, उसमें ये पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती। मतलब जजमेंट राइटिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब 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 आप एक्चुअली जज बनोगे, ठीक है, तो जज बनने के बाद में आपका 1 साल का जो ट्रेनिंग है उसमें आपको ये बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, तो तब तो ये अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये तब की बात अलग है, तब का जो आप जजमेंट लिखोगे वो बहुत बढ़िया रहेगा। एग्जाम का जो जजमेंट होता है वो उतना अच्छा नहीं होना चाहिए, मतलब इतना अच्छा अगर आप लिखने जाओगे उतने ज्यादा टाइम समय हमारे पास नहीं होता है। मेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका राइटिंग स्पीड, ठीक है। मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना कि फ्रेशर एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो फ्रेशर वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका राइटिंग प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छा होता है, ठीक है, मतलब वो अच्छे से पेपर लिख सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस में जाओगे 1-1 साल तक पेन हाथ में नहीं आता है, ठीक है, तो एग्जाम से एग्जाम में लिखने जाओगे तो डिफिकल्टी आती है, ठीक है। पता तो बहुत कुछ होता है मगर वो लिखने का समय नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए फ्रेशर के कैटेगरी में एलिजिबल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी बात बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है जजमेंट राइटिंग वगैरह ये सब आप चीजें आप बाद में कर सकते हैं। अभी आप जब लॉ स्टूडेंट हैं तो अब आपको क्या करना है जुडिशरी का एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। बस आपको दिन में रात को तो आपको एक ख्याल आना चाहिए कि भाई मुझे जुडिशरी में जाना है, तो मैं जुडिशरी में जाने के लिए मैंने आज दिन में क्या किया है, क्या मैंने सिविल प्रोसीजर कोड को पढ़ा है, क्या मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को देखा है, क्या मैंने उसका कुछ इंडेक्स बनाया है, क्या मैंने उसको कुछ सेक्शन को पढ़ा है, ठीक है, या फिर मैंने उसको कुछ नोट्स बनाए हैं, या फिर मैंने उसका कुछ बुक्स पढ़ा है, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। अगर आप आपके आगे के 2 साल में या फिर आने वाला 1 साल में अगर आप इस तरीके से सोचते हैं, तो 1 साल तक सोच रहे और कर रहे हैं उसके ऊपर मतलब एक्ट अपॉन कर रहा है, ठीक है, तो फिर आपको जो है ये एग्जाम आपके लिए वहां पे मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स तो हैं वहां पे आप अच्छे तरीके से वहां पे कवर कर सकते हैं। तो ये आपका मेंस का सिलेबस हो गया। इसमें एक और चीज आपको समझना जरूरी है, अभी प्रीलिम के लिए तो कुछ नहीं होता है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स ऐसा कुछ नहीं होता है, मगर मेंस एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो पेपर फर्स्ट में या फिर पेपर सेकंड में, दोनों पेपर में इफ यू बिलोंग टू ओपन कैटेगरी तो आपको मिनिमम 50 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। मेरिट जो है अभी इस साल का मेरिट जो है 113 तक लगा है, 113, ठीक है, 113 को मेरिट लगा है, 113 के ऊपर मार्क्स आपको मेंस में ये दोनों पेपर में आपको होने चाहिए, ठीक है, तभी आपको वहां पे जो है आपको क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब नियर अबाउट अगर आप पकड़ लेते हैं, मतलब 100 मार्क का पेपर है, तो आपने अगर पेपर फर्स्ट में 60 ले लिए और पेपर सेकंड में आपने 60 ले लिए, तो आपका श्योर पोस्ट आपको मिल जाता है, ठीक है। मतलब श्योर यू विल बी क्वालिफाइड एज ए जेएमएफसी। इंटरव्यू में बस आपको क्रैक, मतलब इंटरव्यू में बस आपको पास होना है, ठीक है। इंटरव्यू में भी आपको 50 मार्क का आपका इंटरव्यू होता है, उसमें आपको 20 प्लस होने चाहिए, ठीक है। ये सबके लिए 20 प्लस है, 20 प्लस मार्क्स आपको वहां पे मिलने चाहिए, देन ओनली यू विल बी क्वालिफाई, ठीक है। तो अगर आपको 20 मार्क नहीं है तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, तो आपको कितने भी मार्क मेंस में क्यों ना हो, ठीक है, आपको वहां पे पोस्ट नहीं मिलेगा अगर आप इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो, ठीक है। तो ये पेपर फर्स्ट जो है ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 50 मार्क्स वहां पे होने चाहिए, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इवन यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो सारे बेनिफिट्स थे रिजर्व कैटेगरी के, ये रोक दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से, अभी ये फिर से शुरू हो जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस से भी अगर आप बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको पेपर फर्स्ट में या पेपर सेकंड में कम से कम आपको 45 मार्क्स वहां पे होने चाहिए। अगर आपको 45 मार्क्स वहां पे नहीं मिलते हैं तो यू विल बी डिस्क्वालीफाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो आप उस ईयर में आप एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते। फिर अगर आपको ये पेपर फर्स्ट में अगर आपको सपोज 44 मिल गए, पेपर सेकंड में आपको 80 क्यों ना मिले, ठीक है, 80 भी मार्क्स अगर आपको मिल जाते हैं,
इवन इफ योर स्कोर जो है वहां पे मेरिट में आ जाते हैं आप, ठीक है, सपोज 113 को मिनट लगा है मेंस का, सपोज उतने चाहिए थे, और आपको अगर सपोज 120 भी है, ठीक है, फिर भी आप इस पोस्ट को क्रैक नहीं कर सकते। मतलब क्या है, मतलब आप किसी पेपर फर्स्ट के सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि पेपर सेकंड पे ज्यादा फोकस करूंगा, पेपर फर्स्ट को इग्नोर करूंगा, ऐसे नहीं चलता। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हमें कोई भी चांस नहीं छोड़ना है, ठीक है, जितना कुछ कर सकता हूं वो हर चीज आपको करनी है, तभी जाके जो है आप इस एग्जामिनेशन को वहां पे क्रैक कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है। 100 मार्क के 2 पेपर रहेंगे, कम से कम 50 आपको मार्क्स चाहिए ओपन के लिए, और कम से कम 45 मार्क्स आपको चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए, और आपको फॉर श्योर इस जुडिशियल का पोस्ट चाहिए, जुडिशियल का पोस्ट चाहिए, तो आपको 60 का टारगेट रखना है पेपर फर्स्ट के लिए, और 60 का टारगेट रखना है पेपर सेकंड के लिए। और ये भी अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, मतलब अभी आपको दिक्कत, अभी कई बार हमको लगता है कि भाई जज तो इतना बड़ा पोस्ट है, ठीक है, मतलब मैं वो हो सकता हूँ क्या, तो एक बार मेंस की क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ठीक है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पेपर कहीं मतलब नेट पे आपको मिल जाएंगे, बस जुडिशरी क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करोगे तो मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो बस अपने जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पे कराड लॉ क्लासेस, ये हमारा एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन पे को भी अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे। एक बार अगर आप पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देख लोगे ना, तो उसमें जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, सपोज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, तो उसकी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान से सवाल है, ठीक है। बस बात क्या है कि कम समय में कम शब्दों में आप उसको किस तरीके से लिखते हैं, वो मैटर करता है। आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आप जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर के आंसर लिखते हैं वो स्टाइल यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पे वो स्टाइल अगर लिखोगे तो फिर ये सीधा काट करके वहां पे बड़ा 0 दे देते हैं, ठीक है। उस तरीके से मतलब कुछ भी मतलब गप्पा या फिर जो चीजें होते हैं, अभी मैं यूनिवर्सिटी में भी मैंने काम किया है, ठीक है, मतलब यह औरंगाबाद मतलब पुणे यूनिवर्सिटी में भी मैंने डिपार्टमेंट में काम किया है, औरंगाबाद की यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में काम किया है, तो वहां पे जो अलग स्टाइल होता है लिखने का, ठीक है, मगर जुडिशरी में जो है, ठीक है, वो स्टाइल आपको वहां पे यहाँ पे नहीं चलता है, आपको टू बी स्पेसिफिक आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। जो आपको बेयर एक्ट में जो दिया गया है उसी के बेसिस के ऊपर आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। मतलब आपका आंसर जो है लॉ पॉइंट पे होना चाहिए, आपका ओपिनियन, आपका डिस्कशन, आपका क्रिटिसिज्म, मतलब हमको क्या है कि भाई कुछ एक भी प्रोविजन अगर 1-2-4 लाइन का सेक्शन भी पता होता है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हम उसको जो है 1.5 पेज का लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चों का जो स्टाइल होता है, ये स्टाइल आपको ये जुडिशरी के एग्जाम में आपको नहीं चलता है, ठीक है। आप 1 पेज भी लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा लॉ पॉइंट लिखना है, अगर आप 2 लाइन में भी लिखते हो तो भी आपको उतने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, जितना लॉ पॉइंट में आपने लिखा है उसी को ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। और जो केस लॉ जो होता है, मतलब बहुत पुराने केस लॉज, ठीक है, मतलब उनके फैक्ट्स वगैरह आप सब बताओगे कि एग्जाम मेंस एग्जाम में इतना सब कुछ लिखोगे, तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता, मतलब 0 कर देते हैं बस वो, ठीक है। मार्क्स जो आपको मिलेंगे, आपको जो लॉ कंटेंट उन्होंने जो पूछा है, ठीक है, उसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। और जिनके सवाल ऐसे होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट का अभी आपने आप सब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर के भी तो हुआ होगा शायद कॉन्ट्रैक्ट आपको, तो कॉन्ट्रैक्ट का एक सवाल मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये सिंपल सा मेंस का सवाल है, ये मेंस को पूछा गया है, तो इसमें लिखना क्या होता है, ये 8 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा, इसमें आपको सेक्शन 10 से सेक्शन 30 तक लिखना होता है, तो फिर सेक्शन 10 से सेक्शन 30 अगर लिखोगे, ये तो मतलब 8 मार्क के लिए तो ये तो मतलब नाइंसाफी हो जाती है, मगर फिर भी आपको ये सारा का सारा लिखना होता है, बस कम शब्दों में अच्छे जिसको जो है जितना इंपॉर्टेंट है वो सब का मतलब क्रक्स निकाल के आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। ये चीज अगर आपको आती है तो आपको जो है जुडिशरी के एग्जाम का पोस्ट लेने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बस मेंस का ये ऐसे कुछ चीजें हैं, ठीक है। मतलब इसके अलावा भी आपको मेरे बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मतलब हाउ टू राइट आंसर इन मेंस एग्जामिनेशन, जेएमएफसी प्रिपरेशन, जुडिशरी प्रिपरेशन, ठीक है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे जुडिशरी प्रिपरेशन तो भी आपको यूट्यूब के हमारे वहां पे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आपको आज तय करना है, ठीक है, एक लेक्चर में आपको मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझा सकता, आपको आज बस तय करना है कि भाई मैंने जो है मेरा ड्रीम मतलब सेलेक्ट किया है, मुझे जुडिशरी में जाना है, तो मैं उसके लिए मेरा हर कदम जो है किस तरीके से उठाऊंगा, कौन से सब्जेक्ट का मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूंगा, ये सारी चीजें आपको जो है वहां पे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अभी मेंस का हो गया, ठीक है, मेंस में आपको पता चल गया कि ये सारे सिलेबस है, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स है, पार्टनरशिप है, स्पेसिफिक रिलीफ है, और सिविल जजमेंट है। सिविल जजमेंट आपको 20 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है। ये 20 मार्क के जजमेंट में आपको 10+ मार्क तो आराम से मिलने चाहिए, अगर आपका जजमेंट मतलब बहुत ही बुरा है, ठीक है। अभी ये जजमेंट का मतलब लॉ के समय पे हमें जजमेंट के बारे में सोचने की कई बार बच्चे डर जाते हैं, जजमेंट राइटिंग, जजमेंट लिखना है, जज जो करते हैं वो काम करना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है, जज जो करते हैं वो अलग जजमेंट होता है, हम एग्जाम में जो लिखते हैं वो अलग होता है। ठीक है, जज जो जजमेंट लिखता है, हमारा पूरा पेपर भी लिखोगे, मतलब आपको मेंस एग्जामिनेशन में पेपर भी फिक्स होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में सप्लीमेंट लगाया, फिर सप्लीमेंट लगाया, फिर सप्लीमेंट लगाया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है वहां पे। एक आपको फिक्स क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, 45 पेजेस रहेंगे, 48 पेजेस रहेंगे। उन पेजेस के अलावा एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब ये आपको बहुत स्पेसिफिक उत्तर आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा आप कितना भी कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते जेएमएफसी एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी मतलब हमें यहाँ पे समझना है कि जजमेंट राइटिंग अगर आप लिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा भी लिखोगे, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा भी जजमेंट अगर जैसे कोर्ट में लिखते हो वैसे लिखोगे तो बाकी कुछ नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे जो जुडिशरी का जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, मतलब इसको हम मिनिमम जजमेंट बोलते हैं। जैसे इश्यूज होने चाहिए तो इश्यूज होने चाहिए, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन होने चाहिए तो वो होना चाहिए। ठीक है, हर इश्यू के ऊपर कौन सा एविडेंस लिया है वो होना चाहिए। ठीक है, आई विटनेस को वेरीफाई करना चाहिए वो होना चाहिए, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होना चाहिए वो होना चाहिए, मार्शलिंग ऑफ एविडेंस होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, चार्जशीट के बारे में डिस्कस करना चाहिए वो भी आना चाहिए, कुछ एडमिटेड फैक्ट्स है उसके बारे में बोलना चाहिए। तो हर चीज जो है, ठीक है, हर चीज जो है मतलब जो स्पेसिफिक चीजें हैं जो हर जजमेंट में होनी चाहिए, उनको मिलाते हुए हमें जजमेंट लिखना है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है। सपोज आई विटनेस का टेस्टिमनी है, उसमें बहुत कुछ बताया, ये सब आपको फिर से रिपीट नहीं करना है। आई विटनेस ने इन्फॉर्मेंट की तरह बताया, दोनों का जो है अच्छा, दोनों ने जो है दोनों का कोलैबोरेशन अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए जो है हम दोनों के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, व्हाई यू आर अप्रिशिएटिंग एविडेंस ऑफ आई विटनेस, व्हाई यू आर अप्रिशिएटिंग एविडेंस ऑफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, ये बस आपको वहां पे बताना है, इसके अलावा आपको वहां पे ज्यादा मतलब जजमेंट को जो हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्रिमिनल के पेपर में आपको एक और चीज होती है, मतलब आपको 2 लॉज एक्स्ट्रा आते हैं, एक एट्रोसिटी एक्ट और दूसरा जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। ये 2 लॉज जो प्रीलिम एग्जामिनेशन को आपको नहीं थे, वो आपको मेंस एग्जामिनेशन में आपको मतलब पढ़ाई उनकी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। अब उसमें अगर आप देखोगे, आपको एक और चीज होती है लीगल एसे, 20 मार्क का आपको लीगल एसे लिखना पड़ता है। ठीक है, अभी ये भी जो है मतलब ज्यादातर जो चीजें करंट में होती है उनके ऊपर होता है, मतलब हमको तो पहले पता चल जाता है कि क्या लीगल एसे आने वाला है। ठीक है, मतलब रिसेंट में क्या चीजें हैं, जो सजेशन हम क्लास के बच्चों को देते हैं कि मतलब ये 3-4 सजेशंस हैं, ये 3 टॉपिक पे लीगल एसे आ सकता है। ठीक है, 2-3 टॉपिक उन्हीं में से आते हैं। ठीक है, तो ये लीगल एसे जो होता है, मतलब सपोज आपको राइट टू प्राइवेसी के ऊपर पूछा जाएगा। ठीक है, सपोज आपको मतलब ट्रांसजेंडर पर्सन के जो राइट्स है उनके ऊपर आपको लीगल एसे पूछा जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन, उसके ऊपर आपको ईडब्ल्यू मतलब आपको लीगल एसे पूछा जाएगा। ठीक है, इवन डिमोनेटाइजेशन के ऊपर भी लीगल एसे आया था। ठीक है, राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर तुमको लीगल एसे पूछा जाएगा। तो इस इनमें भी जो है आपको ये लीगल एसे जो होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एसेस। जस्ट 1 मिनट। हम नॉर्मली जो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तो ये जो उस तरीके से लिखते हैं उस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उस तरीके का ऐसे का स्टाइल यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, मतलब कोर्ट्स भी लिखना, मतलब बहुत ज्यादा कोर्ट्स भी लिखने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, आपको जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जजमेंट लिखने पड़ते हैं, आपको जजेस के कोर्ट लिखने पड़ते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो है हमारे, ठीक है, उन्होंने कुछ बताया है किसी बारे में, ठीक है, तो वो आपको वहां पर लिखना पड़ता है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स है वो आपको लिखने पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल्स है वो आपको लिखने पड़ते हैं, किसी और लॉज के कुछ सेक्शंस रिलेट होते हैं तो वो आपको लिखने पड़ते हैं। इस तरीके से आपको लीगल से वहां पे कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ये फिक्स सिलेबस है, इसमें भी आपको ज्यादा ऐसा कुछ मतलब एकदम से अनप्रेसिडेंटेड ऐसा कुछ नहीं आता है। जैसे मैंने आपको बताया एमपीएससी के एग्जाम में आपको करंट जो नॉलेज होता है उसके ऊपर कुछ भी पूछ सकते हैं, किस तरीके के एमसीक्यू आते हैं, वहां पे ये इस तरीके से हमारे एग्जाम में नहीं होता है। ठीक है, हर चीज जो आपको पता होती है, हर चीज जो आपके क्लास में डिस्कस हुई होती है, मतलब आपने जो बुक्स में पढ़ी है वही आएगी, आपको जो बेयर एक्ट आपने उसमें जो पढ़ा है उसी में से आएगा, अलग आपको कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड हो गया, सिलेबस फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। आपको एक स्ट्रैटेजी भी मैंने समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन की अगर आप बात करोगे तो ये जो होता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें आपने कितना नॉलेज आपके पास है, ठीक है, आपको सीपीसी कितना अच्छा पता है, सीआरपीसी कितना अच्छा पता है। ठीक है, इसी के ऊपर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप कितने सच्चे हो। ठीक है, सपोज आपको कोई भी सवाल पूछेंगे, सपोज आपको पूछेंगे कि भाई तुम खुद को अपडेट करने के लिए क्या करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ सर। तो फिर आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है क्या? आप बोलोगे सर आज का नहीं पढ़ा है। तो कल का पढ़ा है क्या? सर कल का भी नहीं पढ़ा है। तो इस हफ्ते का पढ़ा है क्या? हफ्ते का भी नहीं पढ़ा है। तो फिर क्यों बोल रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ते हो? ठीक है, आपने एलएलएम किया है क्या? हाँ सर किया है एलएलएम। तो सीरियसली किया है? हाँ सर सीरियसली किया है।
डेजर्टेशन का टॉपिक क्या था, पता नहीं। ठीक है सर, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह ऐसा कुछ था, पता नहीं। डेजर्टेशन में हाइपोथेसिस क्या था, पता नहीं। एलएलबी सीरियसली किया है एक मतलब ये 12 सब्जेक्ट छोड़ के कोई और सब्जेक्ट का नाम बताओ, ठीक है, पता नहीं। मतलब आपका झूठ जो है उसको पकड़ा जाता है। हॉबीज क्या है, ठीक है, सच में कुछ हॉबीज है, ठीक है, सिंगिंग पता है तो कोई सिंगर का नाम बताओ, सिंगर को कोई अवार्ड मिला था वो बताओ, ठीक है, किस एरिया से बिलोंग करते हो, आजू बाजू का कुछ पता होता है, इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या फेमस है, ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर कौन है, डिस्ट्रिक्ट के कोई प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज कौन है, ठीक है। तो कुछ भी चीजें आपको वो पूछ सकते हैं और उससे वो लोग अंदाजा लगाएंगे कि कितना आदमी जो है जुडिशियल पोस्ट के लिए सुटेबल है। आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है, आपका बोलने का सेंस कैसा है, कितना घबराते हैं, ठीक है। आपको बोलेंगे कि भाई फ्रेशर बच्चा है, ठीक है, तो फ्रेशर है तो फिर बोलेंगे कि अपना खुद का चला हुआ का केस लॉ बताओ, ठीक है। वो बोलेगा कि सर मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं तो कभी कोर्ट गया ही नहीं हूँ, तो मैंने तो नहीं चलाया। ऐसा कैसे चलेगा, फिर तुमको तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं, तुमको क्यों लेंगे, ठीक है। तो फिर देखेंगे कि ये बंदा कितना नर्वस होता है। मतलब जो चीजें उनको खुद पता होती है कि इस बंदे का कोई चांस नहीं इसने कुछ केस चलाया होगा, ठीक है। 3 साल तक तो कुछ हमको तो कुछ 3 साल तक तो कुछ केस मिलता नहीं है, ठीक है। 3 साल तक तो बच्चे ऐसे ही मतलब कोर्ट में जाते आते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। ये उन लोगों को भी पता है कि 3 साल की प्रैक्टिस में इतना ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। फिर भी जो है आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब किसी के पास नहीं होते हैं, ठीक है। अगर उनको भी इस चेयर से मतलब ये पैनल के चेयर से अगर उनको उस कैंडिडेट के चेयर पे बिठाएंगे तो जो सवाल वो भी जिसका आंसर नहीं दे सकते वैसे भी सवाल पूछेंगे आपको, क्योंकि कई सवाल तो ऐसे पूछेंगे जिसका कोई आंसर होता ही नहीं है, ठीक है। फिर भी आपका जो नर्वसनेस है, आपका कॉन्फिडेंस जो है, आपका सच जो है, मतलब आपकी ऑनेस्टी जो है, वो सब चीजें वो लोग चेक करेंगे। कुछ आंसर ऐसे पूछेंगे, आप लोग बोलेंगे कि मतलब आप अपने लीगल सेंस से कुछ जवाब दोगे, ठीक है, मतलब आपको लगेगा कि ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, तो फिर आप उन लोगों को जो सामने वाले जो पैनल है उनका आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप ऐसे समझ रहे हो कि उन लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। आपका हॉबीज, आपका जो मतलब आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको पूरी तरीके से वो लोग खोल के रख देंगे, ठीक है। और आप नहीं भी खोलना चाहते हो तो फिर भी वो लोग मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे आपका जो है मतलब इंटरनल जो आदमी है, जो रियल आदमी है वो सामने आ जाएगा। अभी आप लॉ के कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तो लॉ के कॉलेज में इट इज अपॉर्चुनिटी टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। आपका पर्सनैलिटी डेवलप करने का एक अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। कॉलेज में जब कोई फंक्शन होता है, ठीक है, मतलब कॉलेज में जो भी चीज मतलब वहां पे होती है, तो फिर आप कितना मतलब खुद को डेवलप करने का प्रयास करते हो, या फिर 2-3 साल में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, ठीक है। इनकी वजह से भी जो है आपका पर्सनैलिटी एक तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। सपोज आप अपने कॉलेज विजिट करने गए, तो कॉलेज में जाने के बाद में आप अपने प्रिंसिपल सर के साथ कितने अदर तरीके से बात कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेसर से कितना मतलब फॉर्मेलिटी से बात कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने कोई कलीग्स है उनके साथ कितना फॉर्मेलिटी से बात कर रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं एक आपकी पर्सनैलिटी बनाती है, जो पर्सनैलिटी जो है आपको इंटरव्यू के इसमें काम आता है। अभी ये इंटरव्यू बस आपके जेएमएफसी के एग्जाम का बात नहीं है, ठीक है। आप सपोज लॉ कंप्लीट करने के बाद में किसी फर्म में आपको कोई जॉब चाहिए, ठीक है, कितने अदर तरीके से आपने खुद को डेवलप किया है, आप कितना मतलब फॉर्मल तरीके से आप रह पाते हैं, ठीक है। उस इंटरव्यू मोड होता है, ठीक है, मतलब इंटरव्यू मोड ऑन करना मतलब क्या होता है, जैसे आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, क्या खाना किया, ठीक है, वो टपरी पे गया, वो उधर चाय होटल में चाय पानी पिया, ठीक है। ये हमारा जो लैंग्वेज होता है वहां पे अलग हो जाता है। मगर जब जैसे ही आप अपने प्रिंसिपल सर के साथ बात करने जाते हैं तो थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा एक तरीके से मतलब एक आदर आ जाता है। प्रोफेसर से जब बात कर रहे हो तो ये जो मोड होता है, ठीक है, मतलब वो मोड हम लोगों को सीखना है, ठीक है। इस तरीके का एटीट्यूड हम लोगों को सीखना है, ठीक है। हर किसी से जब आप बात करते हैं तो हमें जो है एक खुद में मतलब डेवलपमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो डेवलपमेंट होता है जब आप बूढ़े हो जाओगे मतलब रिटायर हो जाओगे तब तक ये डेवलपमेंट चलता रहता है, ठीक है। सामने वाले पर्सन को आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको जो पूछा जा रहा है आप उसको कितना सही जवाब दे रहे हो, कितना ऑनेस्टी के साथ जवाब दे रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें जो है किसी को आपको जो है मतलब इंटरव्यू के जो 1-2 महीने होते हैं उसमें कोई नहीं सिखा सकता। ये आपको जो है आपका लाइफ टाइम प्रोसेस होता है और ये चलता रहता है। जब आप जज बन जाओगे, जज बनने के बाद में भी आप खुद को पर्सनैलिटी में जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बूढ़े हो जाओगे, ठीक है, फिर भी आपका जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चलता रहता है। मरने के बाद में आप लोगों को आपका जो पर्सनैलिटी है उसको लोग याद रखते हैं, ठीक है। मरने के बाद में आपको याद नहीं रखेंगे मगर आपका जो पर्सनैलिटी आपने डेवलप किया है, ठीक है, ये बहुत अच्छा आदमी था, बहुत सच्चा था, ठीक है। ये जो आपके बारे में मतलब लोग बोलते हैं अभी, मतलब बहुत सारे रिस्पेक्टेड लोग होते हैं तो उनके बारे में हम बोलते हैं कि बहुत सच्चा आदमी था, बहुत मतलब डिटर्मिनेंट पर्सन था। ये क्या है, ये आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। मतलब हर काम को बहुत सीरियसली लेता था, ठीक है, पर्सनैलिटी है। इंटरव्यू में वही चाहिए। आपको एलएलएम पूछेंगे, एलएलएम में आपने डेजर्टेशन कैसे किया पूछेंगे, ठीक है। मतलब आप एलएलबी में आपने कोई अगर आप बोलोगे मैंने लीगल एड कैंप में पार्टिसिपेट किया है
तो फिर आपको पूछेंगे कि भाई लीगल एड कैंप क्या होता है, ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, आपने वहां पे क्या, आपका रोल क्या था, ठीक है, हमने कुछ मतलब प्ले में पार्टिसिपेट किया था, तो एक्चुअली प्ले का थीम क्या था। तो क्या उनको सच में जानना है कि भाई थीम क्या था? उनको बिल्कुल नहीं जानना है कि थीम क्या था। उनको बस ये जानना है कि जो चीजें आप लोग करते हो, क्या आप उसमें कितने सीरियस हो, आप हर चीज को कितने सीरियस तरीके से मतलब करते हो, ये बस उन लोगों को जानना होता है। इसी वजह से आपको जो इंटरव्यू में आपके इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वहां पे मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशंस का जो है मतलब उस तरीके से आपको वो भी वहां पे प्रिपेयर करना पड़ता है। तो इंटरव्यू के बाद में आपका जो है वहां पे रिजल्ट लगता है, और अगर आप रिजल्ट में मतलब अगर आप वहां पे टॉप में आते हैं, तो फिर वो उस टाइम का जो सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, वो सेलिब्रेशन मतलब जो है बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। इंटरव्यू में आपका जो मतलब उसके बाद में जो ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग पीरियड भी मतलब आपके लाइफ का बेस्ट पीरियड आपको वहां पे होता है। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे आप मतलब कर सकते हैं अगर जुडिशरी का एग्जामिनेशन अगर आप लोग क्रैक कर पाए, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। यस, अगर किसी को जो भी सवाल है, ठीक है, आपको जो भी सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर, मतलब ठीक है, आपको ये कमेंट बॉक्स आपका चालू रहेगा, ठीक है। मतलब थोड़ी दिक्कत ना आए, ज्यादा हम लोगों के सवाल ले पाए। व्हाट इज द रोल ऑफ मराठी इन दिस एग्जाम, ठीक है। देखिए पहले सवाल ये देखिए, मराठी का रोल क्या है। एक और बात, आप लोगों को जो है आपका नाम जो है, कुछ लोगों का वीवो वगैरह आ रहा है, ठीक है, आपका प्रॉपर अटेंडेंस के लिए आप लोगों को आपका नाम मतलब रिनेम करना है आपको, ठीक है, तब क्या आपके मैडम को मैं प्रूफ मतलब इसका प्रॉपर अटेंडेंस उनको मिल जाए, ठीक है। अगर आपके नाम ठीक से नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे आईफोन वगैरह दिख रहा है, ठीक है, तो आपको उसको एडिट करना है और रीनेम करना है खुद को, ठीक है, तभी आपका अटेंडेंस में आपका नाम आएगा, नहीं तो अदरवाइज ये आईफोन वगैरह समझ में नहीं आएगा उनको, ठीक है। तो पहले मैं आपको मराठी का रोल का बताता हूँ। अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशरी के बारे में बात करेंगे या फिर किसी और नॉर्थ के जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, तो उन लोगों का क्या होता है कि वो लोग हिंदी का जो एग्जामिनेशन है, मतलब हिंदी को जो है वो लोग थोड़ा सीरियसली लेते हैं, और वहां पे ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, मतलब मराठी टू हिंदी वहां पे ट्रांसलेशन वहां पे करना पड़ता है, मतलब सॉरी हिंदी टू इंग्लिश वहां पे ट्रांसलेशन करना पड़ता है। इस तरीके की चीजें महाराष्ट्र जुडिशरी में नहीं है। यहाँ पे जो है आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि मैं मराठी बोल सकता हूँ, मैं मराठी समझ सकता हूँ, और मैं मराठी रीड कर सकता हूँ। और ये सर्टिफिकेट जो है अगर आप फ्रेशर है तो आपके कॉलेज से लेना पड़ता है, आपके प्रिंसिपल सर के साइन से लगता है, ठीक है। और अगर आप मतलब प्रैक्टिशनर है तो फिर आपके जो पीडी है मतलब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है, उनसे आपको ये सर्टिफिकेट वहां पे मिल सकता है। तो वो सर्टिफिकेट बस लगता है, बाकी अदरवाइज आप मतलब प्रीलिम का एग्जामिनेशन इंग्लिश में लिख सकते हैं, मेंस का एग्जामिनेशन आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, मराठी में लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू जो है आप मराठी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं। इंटरव्यू में भी आप कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिकली मार्क्स तो डिपेंड नहीं होते हैं, मगर वो सर्टिफिकेट आपको लगता है, और वो सर्टिफिकेट ज्यादातर अच्छे से मिल जाता है, थोड़ा बहुत भी मराठी आपको अच्छे से आता है तो आपको मिल जाता है। यस, और क्या सवाल है आपका? टेल अस अबाउट बैचेस एंड टाइमिंग एंड ऑल, ठीक है। जुडिशरी के जो हमारे जो बैचेस होते हैं, रात को 8 से 10 बजे का बैच होता है, ठीक है। आप चाहे तो वो लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे जैसे अभी मैं आपको जूम मीटिंग ले रहा हूँ पीपीटी के साथ वगैरह, तो सारे लेक्चर्स हमारे इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे अगर आप कराड लॉ क्लासेस सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये सब रिकॉर्डेड में चाहिए तो कराड लॉ क्लासेस हमारा एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपको ये सारे रिकॉर्डिंग में भी मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड में भी आपको जेएमएफसी का भी मिल जाएगा, यूजीसी का, नेट का, लॉ से रिलेटेड हर एग्जाम के कोर्सेस मतलब हम आपको वहां पे मिल जाएंगे। हाँ, 40 ईयर्स, आपका एज 48 ईयर्स है, तो एनी चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू जुडिशरी एग्जामिनेशन, ठीक है। 48 ईयर्स है तो आपका जुडिशरी के लिए तो वहां पे कोई चांसेस नहीं बचता है, क्योंकि आप डीजे के लिए भी ट्राई करोगे तो 7 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, तो फिर वहां पे आपका उस तरीके का अटेम्प्ट तो वहां पे बचेगा नहीं, ठीक है। जुडिशरी के लिए कोई अटेम्प्ट मतलब कोई आपको चांस वहां पे नहीं है। उसके बाद अभ्यास करताना प्रामुख्याने कोणत्या भाषेतून करावा, इंग्रजी की मराठी, ठीक आहे। मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की तुम्ही इंग्रजीमधूनच अभ्यास करायला पाहिजे, म्हणजे इंग्रजीमधूनच अभ्यास करायला पाहिजे। ह्याच्या मागचं कारण काय आहे? कारण असं आहे की इंग्रजीमध्ये स्टडी मटेरियल खूप प्रॉपर आहे। आता आपल्या क्लासेसमध्ये पण आपण मराठीमध्ये सगळं समजावून सांगतो तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअरली,
पण जे नोट्स असतात आपले ते सुद्धा इंग्रजीमध्येच असतात. आपल्या टेस्ट सिरीज असतात त्या सुद्धा इंग्रजीमध्येच असतात. तुम्ही पेपर लिहायला मराठीत लिहू शकता, ठीक आहे, पण बेटर असेल की आपण ते इंग्रजीमध्येच आपण करायला पाहिजे, ठीक आहे. जर समजा आपल्याला आता बऱ्याच वेळेस काय असतं की फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर मध्ये विद्यार्थ्यांना लॉ शिकत असताना थोडंसं इग्नोर केलं असल्यामुळे लॉला बऱ्याच वेळेस काय होतं आपल्याला ते अवघड वाटतं. पण एकदा तुम्ही जर त्याच्या अभ्यासामध्ये लागले तर अशा वेळेस तुम्हाला अजिबात वाटणार नाही की म्हणजे मराठी थोडंसं अवघड आहे, म्हणजे सॉरी इंग्रजी थोडंसं अवघड आहे असं तुम्हाला अजिबात वाटणार नाही. आणि बॅच आपली एखादी केल्यानंतर तर तुम्हाला त्या नोट्समध्ये तर खूप सिंपल लँग्वेजमध्ये आपण नोट्स बनवत असतो. म्हणजे इंग्रजीमध्ये असं एकदम लॉच्या भाषेत तुम्ही उत्तरं लिहिले पाहिजेत, नॉट नेसेसरी. लीगल लँग्वेज आपल्याला जेवढी अवघड वाटते तशीच आपण उत्तरं लिहिले पाहिजेत, नॉट नेसेसरी. काय म्हणतात सर, सर आय कुड नॉट अटेंड मीटिंग ॲज आय वॉन्ट टू हॅव प्रॉपर नेटवर्क, कॅन यू प्लीज अरेंज द रेकॉर्डेड व्हिडिओ. ठीक आहे, मी गीते मॅडम सोबत रेकॉर्डिंग शेअर करेल. मॅडम तुम्हाला याचं रेकॉर्डिंग शेअर करतील. तुम्ही सर्वजण हे रेकॉर्डिंग परत बघू शकता आणि किती वेळेस बघू शकता. प्रियंका मॅडमचा काय प्रश्न, इज कराड लॉ क्लासेस प्रोव्हाइडिंग ऑनलाईन क्लासेस. येस, आपले सगळे क्लासेस ऑनलाईनच आहेत. म्हणजे पुण्याचं जे आपलं सेटअप आहे नळ स्टॉपला असणार आहे, त्याचं थोडंसं म्हणजे फर्निचरचं काम चालू आहे. सध्याच्याला आपल्या सगळ्या बॅचेसच ऑनलाईन आहेत, लाईव्ह किंवा रेकॉर्डेड, जे मी तुम्हाला आता सांगितलं. फर्स्ट इयर लीगल लँग्वेज पेपर मध्ये, लीगल लँग्वेज पेपर इंग्लिश मध्ये लिहिण्यासाठी ट्रीट सांगा. इंग्लिश मध्ये लिहिण्यासाठी ट्रीट म्हणजे मला तुमचा प्रश्न थोडा लक्षात आला नाही मॅडम. ठीक आहे, आपण तसं कधीतरी म्हणजे तसं वेगळं लेक्चर आपण घेऊ, म्हणजे लीगल लँग्वेजच्या बाबतीतचं. जेएमएफसीच्या पोस्टने मेरिट कॅटेगरीनुसार असतात की ओपन नुसार. ठीक आहे, त्यांचा एक प्रश्न आहे की जेएमएफसी मध्ये रिझर्वेशन वगैरे असतं का, तर कुठलंच रिझर्वेशन नाहीये. ठीक आहे, म्हणजे ही एकच पोस्ट अशी आहे. तुम्ही बाहेर जर बघितलं एमपीच्या ज्युडिशरीच्या तुम्ही पोस्ट बघितल्या, उत्तराखंड ज्युडिशरीच्या बघितल्या, ठीक है, सो किसी भी अगर आप स्टेट के जुडिशरी का अगर आप देखते हैं तो वहां पे रिजर्वेशन होता है, उस स्टेट के लोगों के लिए रिजर्वेशन होता है. अगर आप मध्य प्रदेश की जुडिशरी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, एमपी जुडिशरी के लिए आप यहाँ से रिजर्व भी है. अगर आप महाराष्ट्र में आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आप ओपन में अप्लाई कर सकते हैं. मगर महाराष्ट्र में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है. इवन मतलब जैसे सपोज कोई स्पेशली एबल पर्सन है, उनके लिए भी आरक्षण होता है. ठीक है, अभी ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी आरक्षण आया है, वो होता है. ईडब्ल्यूएस होता है, ओबीसी होता है. तो किसी भी तरीके का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है महाराष्ट्र में. ठीक है, जितना मतलब आपका जो मेरिट है, मेरिट के बेसिस के ऊपर ही सारे सिलेक्शन होते हैं. ठीक है, तो ये एक तरीके से प्लस पॉइंट भी होता है. ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास क्वालिटी है, क्योंकि जुडिशरी में जो है अभी ऐसा नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि रिजर्वेशन की वजह से कुछ प्रोफेशन में क्वालिटी में कमी आती है. ठीक है, मगर पहले से ही ओपन है. इवन इतना ही नहीं, मतलब जुडिशरी नहीं, महाराष्ट्र जुडिशरी में अगर क्लर्क का भी पोस्ट है, ठीक है, या फिर सेवा कर्मचारी का भी पोस्ट है, प्यून का भी पोस्ट अगर आप दे रहे हैं जुडिशरी में, महाराष्ट्र जुडिशरी में, मतलब हाईकोर्ट की तरह जो लिया जाता है, तो उनमें भी रिजर्वेशन वहां पे हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है. तो सारा मेरिट के ऊपर लगता है. एग्जाम अटेम्प्ट, ठीक है, एग्जाम अटेम्प्ट का लिमिट एमपीएससी ने डाला था, अभी नहीं है, उसको रिमूव किया गया है. ठीक है, टिल द एज ऑफ 40 अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है, टिल द एज ऑफ 35 अगर आप ओपन कैटेगरी से है, जितने अटेम्प्ट आपको मिलेंगे आप दे सकते हैं, नो लिमिट. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज या अदर जजेस के जो पोस्ट होते हैं उनका अलग एग्जामिनेशन होता है. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट के लिए आपको 7 साल का प्रैक्टिस लगता है, और उसके बाद में हाई कोर्ट जो एग्जाम कंडक्ट करता है आप उसके लिए दे सकते हैं. या फिर फैमिली कोर्ट के जजेस वगैरह होते हैं, उनके भी जो वैकेंसीज है वो हाई कोर्ट द्वारा आते हैं, और उसका भी इस तरीके से प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है, और लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है. मगर उनके लिए सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट अगर आप देखोगे, अभी यहाँ पे मैंने आपको बस 12 लॉज बताए. डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जामिनेशन का ऐसा कोई सिलेबस नहीं है. ठीक है, मतलब आपको पोस्ट को पूछ सकते हैं, या फिर आपको क्रुएल्टी टू मैरिड, क्रुएल्टी टू मतलब मैरिड वुमेन के साथ जो होता है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का, तो वो लॉ पूछ सकते हैं. क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट का पूछ सकते हैं. ठीक है, पीसीपीएनडीटी एक्ट पूछ सकते हैं, कोई भी लॉ आ सकता है वहां पे. ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट जज के जो कोर्सेस होते हैं उसमें हम 34 लॉज पढ़ाते हैं. ठीक है, जो मेजर उन्हीं लॉज के ऊपर सवाल होते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट जज, फैमिली कोर्ट के जज के लिए ऐसे लिमिट नहीं है. ओपन वीडियो एंड स्पीकर सर, नहीं देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल हम क्लियर करेंगे, तो इसलिए ऐसे ही हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. जब टाइम अगर बाद में बचता है तो फिर हम वीडियो ओपन करेंगे. आप मतलब आप बाद में लेक्चर बोल भी सकते हैं आप उसमें. टिल द व्हाट
what एज ऑफ SC कैंडिडेट कैन अप्लाई। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप 40 साल तक आप दे सकते हैं एग्जामिनेशन, 40 साल तक। फ्रेशर की कैटेगरी में आप 30 साल तक दे सकते हैं, ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के फिर कुछ समय तक तो प्रैक्टिस हो जाता है, तो आप 40 साल तक दे सकते हैं। अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्शन काही नाही आहेत, अगोदर लावले होते आपण, आता MPSC ने ते काढून टाकलेले आहेत, म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे आता रिस्ट्रिक्शन्स नाही आहेत। हा, LLB एक्झामिनेशन बद्दल तुम्ही प्रश्न म्हणजे विचारू नका, तुमचे प्रोफेसर्स तुम्हाला ते क्लिअर करतील। आता ज्युडिशरी बद्दल तुमचे जे प्रश्न आहेत ते विचारा। मिनिस्ट्रियल स्टाफ साठी ओपन साठी जे वय आहे ते 45 आहे। 45 वर्षापर्यंत तुम्ही जर कोर्ट कर्मचारी असाल तर तुम्ही ओपन मध्ये देऊ शकता, आणि त्याच्यात पण तुमच्याकडे EWS असेल तर तुम्ही 50 पर्यंत देऊ शकता। परीक्षा देताना जी भाषा निवडू तीच शेवटपर्यंत वापरावी लागते का? जसे परीक्षा देताना इंग्रजी मधून पुढे जाऊन मराठी माध्यमातून मुलाखत द्यायची असेल, हो, तुम्ही प्रत्येक स्टेजला वेगळी भाषा निवडू शकता, असं काही नाहीये। ठीक आहे, आता प्रिलिमला तर इंग्रजीमध्येच असतो पेपर, प्रिलिमच्या पेपरला तसं मराठीमध्ये क्वेश्चन पेपर येत नाही। पण मेन्स जरी तुम्ही समजा मराठीत लिहिली किंवा इंग्रजीमध्ये लिहिली तरी तुम्ही इंटरव्ह्यूला वेगळी लँग्वेज घेऊ शकता। तुम्ही मेन्स इंग्रजीमध्ये लिहू शकता, आणि इव्हन असं नाही की इंटरव्ह्यूमध्ये तुम्ही समजा तुम्हाला इंग्रजीमध्ये जरी त्यांनी प्रश्न, इंटरव्ह्यूमध्ये कसं असतं, तुम्हाला जर त्यांनी मराठीत प्रश्न विचारला तर आपण हे अपेक्षित असते की आपण मराठीत उत्तर द्यायला पाहिजे। त्यांनी जर आपल्याला इंग्रजीत प्रश्न विचारला तर अपेक्षित असते की आपण इंग्रजीत उत्तर द्यायला पाहिजे। पण जर समजा तुम्हाला तुम्ही इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल इन इंग्लिश, तुम्ही त्यांना रिक्वेस्ट करू शकता की सर विथ युअर परमिशन आय वॉन्ट टू आन्सर दिस क्वेश्चन इन मराठी, असं म्हणून तुम्ही मराठीमध्ये म्हणजे उत्तर द्यायला चालू करू शकता। आणि ह्याच्यामध्ये असं कुठलं बॅड प्रिझम्पशन वगैरे अजिबात केलं जात नाही। असं काही लोकांच्या डोक्यामध्ये असतं की मी मराठीत जर उत्तर दिले तर माझ्या विरोधात म्हणजे काहीतरी प्रिझम्पशन वेगळं होईल, मला इंग्रजी येत नाही वगैरे। ठीक आहे, अशा प्रकारचा फोबिया मनामध्ये अजिबात बाळगायचा नाही। ठीक आहे, मराठी येणं कंपल्सरी आहे, म्हणजे कितीतरी कोर्टाचं सगळं प्रोसिडिंगच मराठीमध्ये आहे। वकील लोक जे ड्राफ्ट देतात मराठीमध्येच देतात। ठीक आहे, जजचं जे जजमेंट असतं ते सुद्धा मराठीमध्येच असतं। त्याच्यामुळे असं कुठलंच काही त्याच्यामध्ये तुम्हाला मनामध्ये असा इंग्रजीचा जो फोबिया आहे, ठीक आहे, तो फोबिया बाळगायची गरज नाहीये। तुम्ही सुंदर पद्धतीने मराठीमध्ये पेपर लिहून मराठीत इंटरव्ह्यू देऊन तुम्ही जज होऊ शकता, जजमेंट भविष्यातले सुद्धा मराठीत लिहू शकता, काहीच अडचण नाही। येस, काय कसा लिहिला पाहिजे? ठीक आहे, हा, म्हणजे माझं सजेशन असं असेल की तुम्ही इंग्रजीमध्ये लिहायला पाहिजे, कारण इंग्रजीमध्ये आपल्याला वाचायला मटेरियल सुद्धा जास्त मिळतं। आणि मराठी कसं आपल्याला आता बोलायला मराठी सोपी वाटते, म्हणजे मी तुमच्यासोबत बोलतोय, मला मराठीमध्ये जास्त कम्फर्टेबल आहे। इंग्लिशमध्ये मी सुद्धा तसा समजा जास्त कम्फर्टेबल नाहीये। पण जर समजा मराठी जर आपल्याला लॉची लिहायची असेल, ठीक आहे, मर्डर सदोष म्हणजे ते आता सदोष मनुष्यवध वगैरे हे शब्द आपल्याला आठवत नाहीत म्हणजे त्याच्यामध्ये ऐनवेळी सदोष मनुष्यवध वगैरे अशा प्रकारच्या शब्दांचा जर अभ्यास करायचा म्हणलं तर ते कठीण होऊन जातं। म्हणजे मग ते काय होतं, इंग्रजी एक तर तुम्ही लिहिताय मराठीत आणि त्याला म्हणताय मर्डर किंवा कल्पेबल होमिसाइड असं म्हणताय, तर ते थोडंसं प्रॉपर वाटत नाही। त्याच्यामुळे इंग्रजी खूप म्हणजे प्रॉपर वाटतं। केस लॉज आहेत समजा ह्याच्यामध्ये, आणि एकदा सवय लागली अभ्यासाच्या प्रिपरेशन मध्ये आलो की आपल्याला इंग्रजीचा तसा भाव वाटत नाही। आता सुरुवात करायची झाल्यास सुरुवात म्हणून काय करावे तसेच वाचावे। ठीक आहे, तुम्हाला आता जर सुरुवात करायची आहे तर तुम्ही पहिलं काम काय केलं पाहिजे, हे जे 12 बेअर ऍक्ट आहेत, हे 12ला 12 बेअर ऍक्ट, आता एखादा आपलं जे लोकल बुक स्टोअर आहे त्या बुक स्टोअरला व्हिजिट करा आणि तिथं हे 12ला 12 बेअर ऍक्ट घ्या, एक आपला हायलायटर घ्यायचा। ठीक आहे, 12च्या 12 बेअर ऍक्टचं एक रिडिंग त्याच्यामध्ये चालू करायचं, आणि खास करून ते विषयांचा अगोदर चालू करा जे विषयांचं तुम्हाला समजा जे विषय तुम्हाला सुटेबल आहेत, म्हणजे तुम्हाला समजा तुमच्या क्लासमध्ये ऑलरेडी झालेले आहेत, तर त्या जे विषय तुम्हाला तुमच्या प्रोफेसरने शिकवलेले आहेत समजा, ठीक आहे, त्या विषयांचं तुम्ही अगोदर चालू करा, म्हणजे तुम्हाला सोपं जाईल। आणि जर कुणाला तसं लक्षात समजा काही अडचणी असतील तर समजायला, किंवा तुम्हाला जर समजा तसं काही इकॉनॉमिक तशी अडचण नसेल त्याच्यामध्ये, तर तुम्ही आपले क्लासेस वगैरे तुम्ही एखादी बॅच तुम्ही घेऊ शकता, म्हणजे सगळे विषय एकदाच क्लिअर होऊन जातील, म्हणजे सगळंच अंडरस्टँडिंग होऊन जाईल जर तसं काही अडचण त्याच्यामध्ये नसेल तर। अदरवाईज तुम्ही स्वतःही सेल्फ स्टडी तुम्ही त्याच्यामध्ये करू शकता। ते 12 बेअर ऍक्ट घेऊन टाका, आपले सगळे क्वेश्चन पेपर घ्या, जसं मी तुम्हाला सांगितलं आपल्या ऍप्लिकेशनवर सगळे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल आहेत, तुम्ही ते ऍप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्या, त्या क्वेश्चन पेपर सगळेचे सगळे बघून घ्या। कोणत्या विषयी कॉन्स्टिट्यूशनवर समजा कशा पद्धतीने प्रश्न विचारलेत, कोणत्या विषयी कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्टवर कशा पद्धतीने प्रश्न विचारलेत, एकदा तुम्ही क्वेश्चन पेपरचं अनालिसिस केलं की तुम्हाला स्वतःला कॉन्फिडन्स वाढून जाईल। म्हणजे मी जे तुम्हाला सांगितलं खूप सोपे प्रश्न असतात, मेन्सचा पेपर बघा, कॉन्ट्रॅक्ट मधले प्रश्न आहेत, कॉन्ट्रॅक्ट झालेला जर असेल तर तुम्हाला ते खूप सोपं वाटेल। जो विषय तुम्हाला झालेला नाही त्याचे प्रश्न बघितल्यानंतर तुम्हाला थोडंसं वाटेल की हे जरा खूप अवघड विचारलेलं आहे, पण तसं काही नसतं। ठीक आहे, जे विषय आपण कॉलेजमध्ये शिकलेले आहेत त्या विषयांचे पेपर बघा, तुम्हाला तसा कॉन्फिडन्स येऊन जाईल।
प्री एक्झाम इज अ ऑप्शन फॉर्मॅट ABCD. येस, प्री एक्झामिनेशन जी असते ती ऑब्जेक्टिव्ह असते, ऑप्शन फॉर्मॅट मध्ये असते. ABCD असे तुम्हाला त्याच्यामध्ये ऑप्शन्स असतात, तुम्हाला ते सिलेक्ट करायचे आहे. ठीक आहे. चुकीच्या उत्तरासाठी तुम्हाला 1/4 ची पेनल्टी असते, म्हणजे 25% मार्क तुमचे मायनस होतात. एज लिमिट जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, तुम्हाला जर फ्रेशर मध्ये अप्लाय करायचं असेल 25 वर्ष ओपन साठी आणि 30 वर्ष रिझर्व्ह कॅटेगरीवाल्यांसाठी, कोणती कॅटेगरी असू द्या. जर तुम्हाला प्रॅक्टिशनर म्हणून अप्लाय करायचं असेल 35 वर्ष ओपन साठी आणि 40 वर्ष बाकीचे सगळे रिझर्व्ह कॅटेगरीसाठी. जर तुम्हाला मिनिस्ट्रियल स्टाफ म्हणून समजा हे करायचं असेल तर अशा वेळेस 45 ओपन साठी आणि 50 बाकी कॅटेगरी, म्हणजे बाकी कॅटेगरीसाठी. तुम्हाला अजून जर समजा ह्याच्यात लक्षात येत नसेल तर तुम्ही आपला एक युट्यूबवर फक्त JMFC एलिजिबिलिटी असं टाका, किंवा युट्यूबवर तुम्ही प्रोफेसर कराड एवढं जरी टाकलं, ठीक आहे, तर तुम्हाला ते लेक्चर्स त्याच्यामध्ये मिळून जातील एलिजिबिलिटीचे. अजून डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केले मी तिथे. हा, प्रिव्हियस इयर नोटिफिकेशन तुम्हाला पाहिजे. मी मॅडमकडे पाठवतो, मॅडम तुम्हाला ग्रुपवर तुमच्या शेअर करतील. ठीक आहे, मी तुम्हाला मागच्या वर्षीचं एक नोटिफिकेशन पाठवतो. त्या नोटिफिकेशन मध्ये सुद्धा तुम्हाला सगळ्याच गोष्टी दिलेल्या आहेत. म्हणजे मी जे तुम्हाला सांगितलं की किती वय असलं पाहिजे, काय असलं पाहिजे, सिलेबस काय असला पाहिजे, त्या नोटिफिकेशन मध्ये तुम्हाला सगळ्याच गोष्टी सापडतील. ठीक आहे, मी लगेच लेक्चर झालं की मॅडम पाशी शेअर करतो, तुम्हाला ते मिळून जाईल. ओपन EWS एलिजिबिलिटी एक्सिडिंग 25 इयर्स. ठीक आहे, जे मी तुम्हाला सांगितलं EWS चे जे बेनिफिट्स होते, म्हणजे रिझर्व्ह कॅटेगरीचे जे बेनिफिट्स होते EWS ला सुद्धा मिळतात ते. ठीक आहे, आणि ते जे बेनिफिट्स आहेत इतके दिवस आपण थांबवलेले होते. मागच्या एक्झाम पर्यंत EWS ला ते बेनिफिट मिळायचे नाहीत. ओपनच्या विद्यार्थ्यांना 25 पर्यंतच देता येत होती. ठीक आहे, कारण आपल्या जे आता मी जे नोटिफिकेशन तुम्हाला शेअर करणार आहे त्या नोटिफिकेशन मध्ये त्यांनी लिहिलेलं असायचं की EWSच्या कॅन्डिडेटला सुप्रीम कोर्टाच्या मागील जजमेंटमुळे जे रिझर्व्ह कॅटेगरीचे जे बेनिफिट्स आहेत ते इथून पुढे मिळणार नाहीत असं त्यांनी लिहिलेलं असायचं. पण इथून पुढे ते मिळायला पाहिजे त्यांना सगळ्यांना. ठीक आहे, आता पुढचं जे नोटिफिकेशन येईल त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते बेनिफिट्स मिळतील सगळे. हर्षदीप, काय म्हणता तुम्ही? वर्किंग प्रोफेशनल अँड विश टू कंटिन्यू टिल finish my LLB. Is it mandate that I have to leave my job and appear in the examination during complete 3 years? ठीक आहे, आता तुम्ही वर्किंग आहात आणि तुम्ही जॉब सोडला पाहिजे का? जर तुमचा जॉब समजा गव्हर्नमेंटचा जर जॉब असेल त्याच्यामध्ये, ठीक आहे, तर तुम्हाला प्रॅक्टिस असं दाखवता येणार नाही. बाकी तुमचा प्रायव्हेट जॉब असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये सनद घेऊन ठेवू शकता. आता हे लीगल नाहीये, म्हणजे हे सजेशन जे असतं हे एक प्रकारचं इलिगल सजेशन आहे. पण सनद काढून ठेवणे, आता बार काउन्सिलचे नियम कसे असतात, बार काउन्सिलच्या नियमानुसार जो व्यक्ती, ठीक आहे, कोर्टामध्ये दुसरा काहीतरी जॉब करतो त्याला सनद ठेवण्याचा अधिकार नाहीये. पण जॉब करणारे लोक सुद्धा सनद काढून ठेवतात. तर तसं तुम्ही प्रॅक्टिसमध्ये दाखवू शकता. प्रॅक्टिस करणारे जे लोक असतात, खास करून JMFC ला जे लोक खरंच ज्यांना पोस्ट मिळते, हे सायमल्टेनियसली खरं तर गोष्टी होत नाहीत. म्हणजे प्रॅक्टिस करणारे लोक जे असतात तेवढा जास्त अभ्यास त्यांचा होत नसतो. म्हणजे तर क्लासेसवाले वगैरेंचा वेगळा विषय असतो, कारण त्यांचं ऑलरेडी सगळं मास्टरच करून घेतं. अदरवाईज स्वतःहून अभ्यास करणारे वगैरे थोडंसं कठीण जातं. त्याच्यामुळे तुम्ही तुमचा जॉब करत असताना सुद्धा जर तुम्ही सगळे विषय कव्हर करू शकता, 3 वर्षाची प्रॅक्टिसचं सर्टिफिकेट आपल्याला लागतं. आणि हे 3 वर्ष प्रॅक्टिसमध्ये कोणत्या केसेस चालवल्या ह्याची लिस्ट द्या, तुम्ही ऍक्च्युअली कोणत्या कोर्टात समजा अपियर झाले हे सगळं सांगा, असलं काहीच नसतं. ठीक आहे, फक्त एक ऍप्लिकेशन करायचं असतं PDGN कडे, म्हणजे आपले जिल्ह्याचे जे डिस्ट्रिक्ट मेन जज असतात, की सर माझी सनद 3 वर्ष जुनी आहे, हे सनदची कॉपी बघा आणि मला 3 वर्षाचं सर्टिफिकेट द्या, मला JMFC साठी ऍप्लिकेशन करायचे. ते एवढंच बघतात आणि तुम्हाला सर्टिफिकेट देऊन टाकतात की 3 वर्ष प्रॅक्टिस झालेली आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने तुम्हाला ते मिळून जातं. त्यामुळे तुम्हाला तसं जॉब सोडण्याची गरज नाहीये, तुम्ही तशा पद्धतीने करू शकता. येस, शेड्यूल कास्ट मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला 40 वर्षापर्यंत देता येते. अँड फ्रेश शेड्यूल कास्ट LLB ग्रॅज्युएट अप्लाय डायरेक्टली विदाउट एक्सपिरियन्स. तुम्ही 30 वर्षापर्यंत शेड्यूल कास्ट जे कॅन्डिडेट आहात, ठीक आहे, म्हणजे फ्रेशर म्हणून तुम्ही विदाउट प्रॅक्टिस, ठीक आहे, कोर्टात एक दिवसही न जाता तुम्ही 30 वर्षापर्यंत डायरेक्ट तुम्ही अपियर होऊ शकता. फक्त फ्रेशर कॅटेगरी बद्दल मी तुम्हाला सुरुवातीला जे सांगितलं तुम्ही तसे एलिजिबल असले पाहिजेत. ठीक आहे, तुमचे परत जे रिपीट प्रश्न होतात ते मी तुम्हाला उत्तर देणार नाही, त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ बघून घ्या, तुम्हाला रेकॉर्डिंग मी पाठवेल त्याच्यामध्ये. येस, अजून काय म्हणताय? हा, LLM कंपल्सरी आहे का? काही कंपल्सरी नाहीये. LLM तुम्ही केलं पाहिजे असं नॉट नेसेसरी, पण LLM तुम्ही प्रत्येकानेच बाकी करिअर ऑपॉर्च्युनिटीसाठी तुम्ही करून घ्यायला पाहिजे असं मी तुम्हाला सजेस्ट करेन. पण LLM झालं नसेल तर सुद्धा तुम्ही डायरेक्ट ज्युडिशियरला ऍप्लिकेशन करू शकता. LLMच्या फर्स्ट इयर मध्ये तुम्ही जज होऊ शकता. ठीक आहे,
येस, LLM इज नॉट कंपल्सरी. हा, LLM चा अजून एक फायदा होतो, तुम्हाला सांगायचं राहिलं. जर तुम्ही फ्रेशर म्हणून तुम्हाला JMFC द्यायची असेल, ठीक आहे, 30 वर्षापर्यंत रिझर्व्ह वाल्यांसाठी आणि ओपन वाल्यांसाठी 25 पर्यंत, आणि जर तुम्हाला LLB ला 55% लास्ट इयरला नसतील, तर तुम्ही LLM मध्ये 55% घेऊ शकता आणि तुम्ही फ्रेशर म्हणून LLB देऊ शकता. तसं LLB नंतर म्हणजे LLM करायला 2 वर्ष लागतात आता, ठीक आहे, म्हणजे 1 वर्ष तुम्हाला अगोदर JMFC द्यायला मिळते फ्रेशर म्हणून. तसं 3 वर्ष प्रॅक्टिस होऊन जाते. LLM करत असताना सुद्धा प्रॅक्टिस धरली जाते. What is eligibility for the writing UGC and SLET examination for the reserve open? नेट एक्झामिनेशनला वगैरे तुम्ही फक्त LLM ला ऍडमिशन असलं पाहिजे, ठीक आहे, म्हणजे LLM ला फक्त ऍडमिशन असलं पाहिजे. तुम्ही फर्स्ट इयरला LLM च्या UGC नेट एक्झामिनेशन देऊ शकता, ठीक आहे. मी स्वतः सुद्धा LLM च्या फर्स्ट इयर मध्येच मी नेट क्रॅक केली होती, ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला त्याच्यामध्ये LLM कम्प्लीट झालं पाहिजे, नॉट नेसेसरी. त्याच्यानंतर म्हणजे नेटची एक्झामिनेशन क्रॅक केल्यानंतर तुम्हाला 2 वर्षात LLM कम्प्लीट करावं लागतं. हा, दुसऱ्या बाबतीत एक्झाम बद्दल तुम्ही विचारू नका, जे आपल्याला JMFC आपल्याला कव्हर करता येईल. LLB करत असताना कोणत्याही सब्जेक्टमध्ये KT लागली असेल, त्यानंतर KT क्लिअर करून ज्युडिशरी एक्झाम देऊ शकतो का? ठीक आहे, KT क्लिअर केल्यानंतर तुमचा तो फर्स्ट अटेम्प्ट धरला जाणार नाही. तुम्ही ज्युडिशरी एक्झाम देऊ शकता, बट आफ्टर 3 इयर प्रॅक्टिस. म्हणजे लॉ तुमचं करावं लागेल तुम्हाला. त्याच्यानंतर तुम्हाला बार काउन्सिलची सनद घ्यावी लागेल, म्हणजे त्यांची फीस वगैरे भरून हायकोर्टामध्ये तुम्हाला सनद मिळत असते. आणि ती एनरोलमेंटची जी तारीख आहे तिथून पुढे 3 वर्ष थांबावं लागेल. फ्रेशर म्हणून देता येणार नाही. बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये असं वाटतं की म्हणजे असा एक प्रश्न असतो विद्यार्थ्यांचा की सर, मला फक्त दिवाळीचे जे सेमिस्टर असतं त्या सेमिस्टरमध्ये KT लागली होती आणि मी लॉच्या फर्स्ट इयरमध्ये क्लिअर केलं, म्हणजे ॲज अ फर्स्ट इयर माझं क्लिअरच होतं, असं बॅकलॉग नव्हता, म्हणजे असं जास्त दिवस असं लागलं नाही, तसं काही वर्ष बॅक राहिलं नाही, तरी सुद्धा ते अटेम्प्ट धरला जाणार नाही. बुक लिस्ट फॉर द ज्युडिशरी एक्झाम, ठीक आहे. बुक लिस्ट मी तुम्हाला म्हणजे सांगेल, म्हणजे हा, किंवा तुम्ही काय करा, एक युट्यूबवर सर्च करा, रेफरन्स बुक JMFC प्रोफेसर कराड, ठीक आहे. रेफरन्स बुक JMFC असं सर्च करा, तुम्हाला आपला एक तासाचा 1.5 तासाचा व्हिडिओ मिळून जाईल, ठीक आहे. कारण कसं असतं, मी तुम्हाला आता समजा आता IPC साठी KD गौर वाचा असं मी तुम्हाला म्हटलं फक्त, पण KD गौर म्हणजे सगळा KD गौर वाचायची गरज नाही. तो जो माझा लेक्चर आहे युट्यूबवरचा, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की KD गौर मधलं नेमकं काय वाचायचं हे मी तुम्हाला त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. तुम्हाला ते युट्यूबवर मिळून जाईल असंच. गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज लिव्ह घेऊन सनद घेऊ शकतात का? ठीक आहे. आता लिव्ह घेऊन तुम्हाला सनद म्हणजे तुम्ही असं किती दिवसासाठी त्याच्यामध्ये लिव्ह घेणार? 3 वर्षासाठी लिव्ह घेऊन सनद वगैरे घेणं, तर म्हणजे असं बार काउन्सिलच्या नियमानुसार तसं काही अडचण नसायला पाहिजे त्याला. तुम्ही वर्किंग नसले पाहिजेत असे, पण तुम्हाला थोडंसं बार काउन्सिलचे नियम बघावे लागतील. म्हणजे मला एक्झॅक्ट समजा कदाचित आता या प्रश्नाचं उत्तर लगेच इथे सांगता येणार नाही, ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला बघावं लागेल त्याच्यामध्ये की गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज लिव्ह घेऊन सनद कॅरी करू शकतात का. बार काउन्सिलकडेच म्हणजे जिथे रजिस्ट्रेशन होतं, समजा एनरोलमेंट जिथे करतात हायकोर्टामध्ये, त्यांना तुम्हाला तशी चौकशी करावी लागेल एकदा. आफ्टर 30 एज, हाऊ मच लॉ प्रॅक्टिस एक्सपिरियन्स इज रिक्वायर फॉर JMFC एक्झामिनेशन फॉर SC कॅन्डिडेट? सगळ्यांसाठी 3 वर्ष प्रॅक्टिस लागते फक्त. JMFC साठी तुम्हाला 3 वर्ष प्रॅक्टिस आहे आणि डिस्ट्रिक्ट जज एक्झामसाठी तुम्हाला 7 वर्ष प्रॅक्टिस आहे. तुम्हाला सरकारी वकील व्हायचं असेल तर 5 वर्ष प्रॅक्टिस आहे लॉ झाल्यानंतर. जॉब करताना बार काउन्सिल एक्झाम देऊ शकता का? देऊ शकता, काही अडचण नाही. हाऊ टू टेक ॲडव्होकेट सनद गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई? येस, तेच तुम्हाला बघावं लागेल त्याच्यामध्ये. UPSC MPSC रिक्रुटमेंट ज्युडिशियल एक्झामिनेशन, प्लीज गिव्ह इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे, आपली जी JMFC एक्झाम असते ही MPSC कंडक्ट करतं, ठीक आहे. म्हणजे MPSC द्वारे JMFC ची एक्झाम आपली कंडक्ट केली जाते. आणि UPSC जे आहे, आता आपल्याकडे ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिसेससाठी डिस्कशन चालू आहे, ठीक आहे. म्हणजे आपलं सध्याचं जे सरकार आहे, म्हणजे NDA गव्हर्नमेंट जे नरेंद्र मोदी यांचं गव्हर्नमेंट, तर यांचा प्रयत्न आहे की नॅशनल ज्युडिशियल म्हणजे आपलं ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिसेस म्हणजे बनल्या पाहिजेत, ठीक आहे. तर ते त्यावेळेस तुम्हाला UPSC द्वारे त्या पोस्ट कंडक्ट केल्या जातील. म्हणजे ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिसेस जर चालू झालं, पण त्याला सुद्धा 7 वर्षाची प्रॅक्टिस लागेल. ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिसेस तुम्हाला विदाऊट 7 इयर प्रॅक्टिस तुम्हाला देता येणार नाही, कारण आपल्या संविधानामध्ये स्पष्ट सांगितलेलं आहे की ऑल इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिसेसमध्ये डिस्ट्रिक्ट जजच्या खालची पोस्ट भरायची नाही, ठीक आहे. त्याच्यामुळे ते जेव्हा होईल तेव्हा UPSC कंडक्ट करू शकतं. DJ साठी तुम्ही 45 पर्यंत देऊ शकता.
35 पासून 45 पर्यंत. वयाच्या 35 वर्षापासून 45 वर्षापर्यंत तुम्ही ते देऊ शकता. ठीक आहे. सर्वांचे प्रश्न सुटलेले आहेत का अजून कोणाचे काही प्रश्न आहेत? मी हे ओपन करतो. ठीक आहे, अजून काय असतील तर तुम्ही विचारू शकता. ठीक आहे, म्हणजे मॅडम तुम्ही पण आता अनम्यूट करू शकता. Harshad sir, our questions will never end. Yes, I think our students are very curious about many exams except JMFC also. Students will conduct any other session for all those exams except JMFC and CJJD. This session is meant only for the JMFC exam, so don't ask any question except it is related to the JMFC exam. येस. ठीक आहे, आणि असं काही नाहीये. तुम्हाला जर समजा असे काही प्रश्न असतील त्याच्यामध्ये तुम्ही मला परतही मेसेज करू शकता. तुम्हाला मॅडम कडनं तुम्ही नंबर घेऊ शकता माझा, किंवा तुम्ही युट्यूबवर कुठेही हर्षद कराड, तुम्ही गुगलवर जरी हर्षद कराड टाकलं तरी तुम्हाला त्याच्यामध्ये माझा मोबाईल नंबर वगैरे मिळून जाईल. ठीक आहे, तर तसे बाकीचे प्रश्न तुम्ही तिकडे विचारा, काय अडचण नाही. येस. मला वाटतं प्रश्न संपलेले दिसत आहे आता. येस मॅडम. हा. सो स्टुडंट्स, काही प्रश्न आलेत का अजून? जॅग ऑफिसर वगैरे इथे नका विचारू दे. त्यासाठी आपण करिअर गायडन्सचं वेगळं लेक्चर ठेवत असतो. तर आज हर्षद सरांनी आपल्याला एवढा वेळ देऊन एवढी डिटेलमध्ये सगळी माहिती सांगितली. खरंच मला सुद्धा एवढी माहिती नव्हती. मी सुद्धा एक JMFC ऍस्पिरंट असून सुद्धा एवढी डिटेलमध्ये माहिती नव्हती. विषय आणि सगळी एलिजिबिलिटी हे सगळं माहित नव्हतं. आपल्याला स्वतःच्या कॅटेगरी बद्दलच शक्यतो माहित असतं की माझ्या कॅटेगरीला काय एलिजिबिलिटी आहे. तर सर हे सेशन खरंच खूप माहिती आम्हाला भेटलेली आहे. दिस सेशन, I hope this session was really helpful to you, informative to you, and you have got the general idea, the preliminary idea which you must have before thinking about these exams. So thank you so much, Harshad sir, for giving a lot of time to us. Sir has given almost 1 hour and 40 minutes. He has answered each and every question of the students. So we would like to invite you again, sir. Yes, ma'am. I'm really thankful to you. On behalf of New Law College, Mahim, I thank you. Thank you, Yes, sir. ma'am. Okay, and here I declare this session is over. Okay, thank you, ma'am. Thank you all of you for your patient listening. And thank you, ma'am, for Thank you, sir. giving me opportunity to interact with these young minds. Thank you, ma'am. Okay, thank you all of you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir, thank you, sir. Thanks, sir. Thanks, everyone. Take care. Thank you, sir. Thank you all of you.